What an exciting start to the ICC Men's T20 World Cup 2022 in Australia. Could have not gotten any better. Two outstandingly great games of cricket and a lot of surprises there. Though Netherlands there in the end took those 2 points, important valuable points, but they did have their heart in their mouth for those few overs in the end. What a great game of cricket. Well done to UAE. Had UAE been successful in defending that total, that would have been the lowest total ever defended in a T20 World Cup game. Almost there, but not quite enough. That's how it all went down. आइए सबसे पहले ज़रा नज़र डालते हैं हमारे स्कोर कार्ड के ऊपर. ये जो पहला मैच हुआ है, दूसरा मैच सॉरी जो भी हुआ है, इस मैच समरी आपके सामने है. मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले बैटिंग की, 111 रन बनाए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर. वसीम उनकी तरफ से 41 रन 47 गेंदों के ऊपर. And then, well, everybody contributed a little bit. Nice, very good bowling by the Netherlands side. And 3 wickets there for the lead right in the beginning. Pringle also bowling really well. And penalty 8 over जो है बगैर boundary के गए शुरू के in the UAE innings. And that is a question mark for UAE's performance. So we'll talk about that in a bit. Netherlands there coming back with 112 for 7. And it went all the way to the end of the last over, 5th ball. And Netherlands winning by 3 wickets. जुनेद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली 24 रन देकर. और ज़हूर ने बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल कराया, 4 ओवरों में सिर्फ 11 रन दिए. That says a lot about the pitch, the conditions and the state of mind. There's a lot to talk about. Let me bring in the experts, the legends, the icons that I have here in the studio with me. An honor to have them here with me. Sabse pehle, welcome Shoaib Malik, and with him is Paul Haq and the Sultan himself, Wasim Akram. Gentlemen, thank you, welcome, and what a start to the ICC Men's T20, Wasim. Unbelievable, especially both the games, close games, ideal start for World Cup, and all me, myself, Shebi, Misbah, सारे experts जो श्रीलंका को favorite कह के सुबह जाके दोबारा मैच देखे. And then what a performance by Namibia. Yeah. I mean 165 like Misbah said, it's a good total, especially ऐसी pitches में जब हम ऑस्ट्रेलियन pitches की बात करते हैं तो ये बात करते हैं. आपने देखा कि सेकंड मैच में बॉल टर्न भी हुआ, बॉल बाउंस भी हुआ और बॉल सीम भी हो रहा था. So this is the difference between subcontinent pitches and Australian pitches. And there was a good Aussie pitch. It wasn't uneven. It was just जो कि because वो pitches पे घास छोड़ते हैं, even drop in पे, फिर उस घास को ही roll in करते हैं. ये नहीं कि घास काट के जैसे हम तो पता नहीं क्या क्या ढूंढ के लाते हैं घास काटने के लिए. क्यों मिसबा, you would know. मिसबा ये आप पे बार-बार क्यों आ जाती है बात? वो एक नई मशीन बनाई है उन्होंने. क्या है? कि जो पिच के अंदर वाला भी घास है ना, उसको भी काट दो. अगर वो पिच सोच रही है कि वो घास है, वो भी काट देगी. सोच में भी घास नहीं आनी चाहिए. चलें, but good point that drop in pitch, घास भी थी वहाँ पर, and then it was a really sporting wicket. मगर ये UAE की ज़रा बैटिंग कार्ड देखते हैं मिसबा, and there are a lot of question marks there for the UAE team because there was no intent there, and very very slow. एक ही वाहिद ओवर है जिसमें उन्होंने 10 रन जो है वो स्कोर किए थे. ये कार्ड आ रहा है आपके स्कोर कार्ड for the UAE team coming up on your screen, and there it is. If you look at there, right in the beginning. There are no surprises. अगर आप उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो एक ही उनका प्लेयर है वसीम, जिसकी 40 की एवरेज है. उसके अलावा कोई उनकी बैटिंग लाइनअप में ऐसा बैट्समैन है नहीं. सेकंड ओपनर जो चिराग है उसके 30 पॉइंट समथिंग की एवरेज है. उसके अलावा अगर आप उनकी कैरियर एवरेजेस देखें तो नथिंग, 20, 22, 12, 14. और फिर ये कंडीशंस, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस चैलेंजिंग हैं. अब जितनी भी फॉरेन टीम्स यहाँ पे आ रही हैं, नमीबिया है या इवन नेदरलैंड्स है, वो इन कंडीशंस में या वो साउथ अफ्रीका खेलते हैं या वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं. वो यूज़ जो उनकी टेक्निक्स थोड़ी बेहतर है, इसलिए वो यहाँ पे इन कंडीशंस को थोड़ा कोप कर लेते हैं. अब UAE क्योंकि हम फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं और ज़्यादातर जितने भी प्लेयर पाकिस्तान से जाते हैं उनकी बेस सीमेंट क्रिकेट अभी भी खेलते हैं और टेप बॉल क्रिकेट से मोस्टली प्लेयर जाते हैं. तो वो हिटिंग और वो वाला काम तो कर सकते हैं, पर प्रॉपर क्रिकेट जहाँ पे आपको खेलनी पड़ती है, स्पेशली फ्रंट फुट और बैक फुट, जिस पे आई सपोज 125, 130 would have been a very good total. Very good total. Yes. Because as a team, okay, आप में भी मिनोज हैं या आप काफ़ी अरसे से UAE खेल रही है, अभी नहीं कि अभी आई है इस वर्ल्ड कप में. सो आप असेस कर लेते हो ना कि यार ओके ये विकेट पे मुश्किल है, थोड़ा गेंद फंस रहा है या टर्न भी हो रहा है, सो आई विल गो रन अ बॉल माई सेल्फ. अब उसका ये है वसीम भाई, जैसे उनमें मोहम्मद वसीम है, या जैसे मिसबा भाई ने कहा कि 40 की एवरेज है,
लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है, अगर हम इस उसमें देखें तो ही प्लेड 47 बॉल्स, Yeah. ठीक है। और मैं जो जितना इनको जानता हूँ या जो मैंने इनकी इनिंग्स देखी हैं T10 में या लोकल क्रिकेट में UAE में, तो Yeah. इनका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं होता। ही प्लेज हिज शॉट्स। Okay. तो जब आप अपने आप पे ये एडिशनल प्रेशर ले आते हैं ना कि ओ मैं बैट्समैन हूँ और मुझ पे रिलाई कर रही है, उस वक्त आप गलती ये करते हैं कि आप अपना गेम छोड़ देते हैं। Correct. आप अपने गेम से हट जाते हैं और उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, एंड ऑफ द डे वो टीम को होता है। Yeah. अब अगर यही उन्होंने 41 रन्स किए होते 30 ऑड बॉल्स में, तो जो बॉलें इन्होंने खेली कोई और खेलता तो हो सकता है कि वो उन बॉलों पे ज़्यादा रन्स कर लेता या उनको मिलते, वो थोड़ी सेटल होते और उसके बाद वो अपना गेम खेलते जो बाकी के You बैट्समैन know, I थे। love the interest in UAE. They're about, I found out just now, I was there last week. They have 52 grounds now. Yes. 52 means 52 turf grounds. Cement की नहीं है सिर्फ, ये 52 Yeah. वो हैं. So cricket is huge. Obviously locals are not interested. They are interested in soccer. So mostly players are from Pakistan, Sri Lanka. 5 तो इस टीम में हैं पाकिस्तान आज से 5 जुड़े खेले हुए। हैं पाकिस्तान के जो Yeah, playing और Yeah, इनको but- बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं ICC Best, क्रिकेट एकेडमी में। उनको मतलब हर फैसिलिटी अवेलेबल है उनके लिए, क्योंकि आई ऑल्सो Correct. प्रैक्टिस एट ICC, तो मैं देखता हूँ कि ये सारे लड़के जो है वहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस कर रहे होते हैं, और इवन जो फैसिलिटीज़ हैं ICC की, आई गेस आई वुड से बेस्ट इन द वर्ल्ड। और Actually- मुझे लगता है कि वहाँ पे इससे बेहतर प्लेयर्स भी हैं। मुझे सिलेक्शन का भी इशू लगता है, क्योंकि अभी KPL में भी कुछ लड़के आए थे, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे जिनको इन्होंने कहीं पे भी नहीं है। और वहाँ लीग्स में वो बड़ा, जैसे मलिक ने भी कहा है कि वो T10 में या जो लोकल लीग्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे लड़के हैं, लेकिन वो नहीं है टीम में। और आज भी देखें कि मोस्ट पार्ट ऑफ देयर इनिंग विकेट्स भी हाथ में थी, आउट नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ट्राई ही नहीं की। अच्छा, बड़ी वैसे ये चूंकि अब यूएई की क्रिकेट की हम बात करें, यूएई की क्रिकेट बड़ी ऑर्गेनाइज हो गई इवन एट क्लब लेवल। वो एक मुखातिर लीग होती है, एक DSL है जो बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें जो कि बड़ा लंबा टूर्नामेंट चलता 100 टीमें है हैं जी, उसमें 100 टीम्स हैं और बहुत कंपेटिटिव वो चलता है। एंड DSL हैज़ ग्रोन टू बी ए वेरी, इट्स एन इंडिजिनस ब्रांड जो कि बहुत अब सक्सेसफुल हो गया है दुबई के अंदर, एंड एवरीबडी वांट्स कि उनकी टीम जो है वो DSL के अंदर जो है ज़रूर पार्टिसिपेट करे, यू नो। सो गुड स्टफ देयर फॉर द UAE टीम। बट लेट्स टॉक अबाउट, शोएब आपने कल बात की कि इंटेंट होनी बड़ी ज़रूरी है, और वसीम आपने भी कल जिक्र किया कि जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की एक मैच के अंदर इंटेंट के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान आ गए थे। आज UAE की टीम के अंदर इंटेंट जो थी वो लैकिंग थी, लेकिन लेट्स नॉट टेक अवे फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ नेदरलैंड, दे वर डॉट ऑन। बिल्कुल, उसमें देखें मीडियम पेसर्स थे, फ्रेश पिच थी, ड्रॉप इन पिच थी, और उसमें मिसबा भाई ने सुबह ही कहा था कि फ्रेश पिच पे मीडियम पेसर्स जो हैं वो इफेक्टिव होंगे। और शेबी इनके जो मीडियम पेसेस होते हैं, जैसे नीदरलैंड हो गए, नमीबिया हो गए, लाइक यू सेड दे हैव बीन प्लेइंग आदर इन साउथ अफ्रीका और आदर इन इंग्लैंड फॉर काउंटीज और फर्स्ट क्लास और व्हाटएवर T20। सो उनको पता है कि हमने वो कंसिस्टेंट लेंथ में मारते रहते हैं, वो नैगिंग सी लेंथ नहीं होती जी, बिल्कुल। बुरा बॉल नहीं करते, आपको एक्चुअली बुरा बॉल बनाना पड़ता है ऐसी पिचेस पे। देखें वसीम भाई, एज अ बैट्समैन अगर आप मीडियम पेसर्स को खेल रहे हैं तो आपने आप क्रीज में रह के नहीं उनको खेलें। अच्छा, आप क्रीज में मूव उनको करें, सेट नहीं होने देना। तो बिल्कुल। देख, वो मीडियम पेसर का ये है कि वो आपको बैक फुट वाली लेंथ से तंग नहीं कर सकता, वो आपको फ्रंट फुट वाली लेंथ से तंग कर सकता है। जो 6 से 8 मीटर वाली लेंथ है, वहाँ पे वो बॉलें करके आपको तंग कर सकते, वो आपने हिलानी है। और देखें, मुझे ये लगता है कि जो फ्राइलिंग हैं, उन्होंने जो रन्स किए हैं, या जो श्रीलंका वाले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले की जी पहले वाले मैच, उन्होंने रन्स किए हैं, क्रीज में रह के नहीं किए, हिलजुल के हिलजुल के किए उस हैं पे हम उन्होंने शोएब runs। बात करेंगे व्हेन वी कम दैट, बिकॉज़ वो हम दिखाएंगे भी सारे के सारे विजुअल्स जस्ट टू रीइंफोर्स व्हाट यू आर सेइंग एंड योर कांसेप्ट। बट लेट्स टेक अ लुक एट द नेदरलैंड्स बॉलिंग कार्ड हियर। दिस वी वर टॉकिंग अबाउट देयर बॉलिंग। तो ये बॉलिंग उनका वो है। प्रिंगल देखें यहाँ पर इन्होंने 11 रन दिए हैं 4 ओवरों में, एक यार एवरी बॉलर, एवरी बॉलर एब्सोल्युटली। क्लासन ने भी 13 रन दिए, 2 विकेटें लिए हैं, पिक ऑफ द बॉलर वाज बस लिडे, 3 विकेटें उसने लिए हैं सिर्फ 19 रन दे के। सो प्रेशर इन पे पड़ा ही नहीं बॉलर्स पे। सिर्फ वसीम भाई, वही जो अभी हम बात कर रहे थे लेंथ वाली, नेकिंग लेंथ वाली, ये वैन बीक ने आके वो लेंथ छोड़ी है, वो थोड़ा फुल चला गया और उसको देखेंगे 2 ओवर में 19 रन हो गए, लेकिन उन्होंने फ़ौरन उसको चेंज किया। दे जस्ट ब्रॉड अदर बॉलर्स जो कि उस लेंथ को हिट कर रहे थे, उनको आइडिया हो गया कि यहाँ से मुश्किल है। आई थिंक दे डिड अ वंडरफुल जॉब, जो कि मुझे लगता है कि
यूएई बाद में मिस कर गया वो कहीं ना कहीं। टुवर्ड्स द एंड ओवर यूएई मिस कर गया, बट जुनैद सिद्दीकी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। आज 24 रन और 3 विकेटें। मुल्तान में इनकी पैदाइश हुई थी और सारी क्रिकेट इन्होंने जो है वहाँ पे खेली। और फिर ज़हूर की भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वो भी पाकिस्तान से खेले हुए हैं। इनफैक्ट मिसबाह फैसलाबाद वुल्व्स में आपकी कप्तानी के नीचे खेले हैं वो ज़हूर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आया था उस वक्त, इसका डेब्यू हुआ। फिर अच्छा बॉलर था, तेज़ बॉलर था उस टाइम, 140 प्लस पे करता था आउट स्विंग, बड़ी अच्छी आउट स्विंग होती थी। आज भी आपने देखा है कि बॉल उसका बाहर निकल रहा था ज़बरदस्त, और यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेलता रहा है। जुनैद सिद्दीकी ने भी आई थिंक कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, एरियाज़ बड़े ज़बरदस्त थे इसके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी पिच पे ये होता है कि आप वो जो उस आके सीम मारते हैं उस लेंथ पे, अगर सीम हिट होती है और थोड़ा सा भी ग्रास है पिच पे, then it becomes very difficult. That drop catch was a big letdown. Pringle was on zero. अभी आए था, and it was a very easy catch as well. So easy catches में जैसे पाकिस्तान के खिलाफ वो यंग इंडियन फास्ट बॉलर ने ड्रॉप किया था, ये आसिफ का कैच। हाँ, ये देखिए, बात कर रहे थे। अब ऐसे कैचेस में होता क्या है, आई सपोज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इज सिटिंग विद अस आजकल की क्रिकेट में, वो एक्सप्लेन बेटर कर पाएगा। बट इन माय ओपिनियन सम टाइम ऐसे कैचेस, जैसे वो कौन सा बॉलर था लेफ्ट आर्म इंडिया का भी जिसने अर्शदीप, आई थिंक उसका नाम है शायद अर्शदीप, हाँ, वो ऐसे कैचेस को क्या करते हैं कि आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स ले लेते हो, वो ये मैं आराम से कर लूँगा, बॉडी नीचे नहीं आती, हाथ ऊपर नहीं आते, तो बड़ा कैजुअली पकड़े तो मोस्टली फिर ड्रॉप होते हैं, राइट? बिल्कुल वसीम भाई, और आई गेस इसमें डिपेंड करता है कि जब आप अपना प्रैक्टिस सेशन करने जाते हैं उसमें आप कितने सीरियस हैं, क्योंकि वो आपकी हैबिट बनती है। जब हैबिट बनती है तो वो फिर आप सेम चीज़ जो है जो आपने प्रैक्टिस सेशंस में की होती है वो सीधा आप जाके मैच में करते हैं। तो आई गेस जैसे ही इजी कैच, और इजी कैचेस ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि आपका फोकस लेवल जो है ना वो कम होता है उसमें, और आप जो है ना ये सोच रहे होते हो तो आ गया, लेकिन वही जो है फिर निकल जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वसीम भाई के बेसिक आपने रिपीट करनी है उसी तरह हर कैच में। अभी भी इसमें देखें वो कामनेस चाहिए आपको, लास्ट जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है बॉल के नीचे, यू जस्ट गेट योर हेड स्टिल। जब आप नीचे आते हैं पोजीशन, वो जो बैटिंग में हम बात करते हैं पावर पोजीशन में आपने आना है, और वो थोड़ा सा टाइम आपने सेटल डाउन होकर देना अपने आप को कैच करने के लिए। अगर आपकी सारी चीज़ें बेसिक्स आपने ठीक है, देखें मूव कर रहे हैं अभी भी, वो मूवमेंट में आपकी वो कभी भी जब तक आप हेड स्टिल नहीं होगा, आप बॉल को हिलते हुए आप उस तरह रिसीव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप जल्दी नीचे पहुँचें और अपने आप को वही थोड़ी देर का पॉज है आपको मिलना चाहिए। अर्शदीप वाला जो कैच था वो भी मैं आपको बताऊं, बहुत उसने वो बिल्कुल ऐसे पकड़ा। उसकी अगर आप पोजीशन देखें ना अभी भी वो बाद में, तो वो ऐसे दोनों टांगें सीधी थी उसकी, यूं खड़ा और आगे ऐसे। ये आप सीधे कैच पे भी कभी नहीं कर सकते, यू गॉट टू बी इन अ पावर पोजीशन। ये आपकी एक टांग थोड़ा सा, ताकि आप एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे अगर बॉल थोड़ा आगे पीछे है तो यू शुड बी एबल टू मूव योरसेल्फ, वरना गेंद थोड़ा दूर हो गया तो आप खड़े हैं, आप बॉडी तो जाएगी नहीं, खाली हाथ जाएंगे, तो किसी भी टाइम वो बबल हो गया। कैच जो है ना बिल्कुल उसको हम लोग हाथ में लगते हुए नहीं देखते, हमारे जो आईज है ना वो यहाँ फिनिश हो जाते हैं। सो व्हाट इज द राइट टेक्निक? राइट टेक्निक इज, देखिए बैटिंग और फील्डिंग में ये कैच देखें एक जरा स्क्रीन पे, आप क्या रहे लुक एट दैट, ये देखिए उसका ना गैप था, आपकी जो दोनों टांगे हैं उनमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए और थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए। Okay, actually, you know what? Since you have brought this up, and I think it is very important for young cricketers to see how this is done. Shoaib, why don't you go over there? एक बॉल वहाँ पे रखी हुई है, and give us a little bit of a demo. Bisma, please help him out. I would love to do that. No, we want to, because we have, we have this platform. We want young people to be involved and to be able to watch. Yeah, excellent. कैच करने के लिए बैलेंस क्या होना चाहिए, चाहे वो आसान है चाहे वो मुश्किल है। बिल्कुल। We have two of the best fielders, I suppose. पेविलियन में ये हमारा एक नया हिस्सा है, हमने एक एरिया बनाया है जहाँ पर हम ज़्यादा थरली आपको बता सकते हैं। सो इट्स ओवर टू यू गाइस। देखिए इसमें अगर आप हाई कैच कर रहे हैं, जैसे मिसबा भाई ने कहा कि आपको सबसे पहले जो है ना बॉल के नीचे पहुंचना है ताकि आप वो बैलेंस कर सकें, और अगर जैसे मैंने बॉल फेंका ये होना चाहिए, ये पोजीशन जो है ना ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेफ्टी हैं और आप कंफर्टेबल है कि आपकी राइट लेग सामने हो तो आप इस तरह कैच करें, आपकी लेफ़्ट वाली जो है राइट वाली जो टांग है वो आगे हो, और अगर आप राइटी हैं
तो क्योंकि मुझे कंफर्टेबल रहता है अगर मेरी लेफ़्ट टांग आगे हो, मैं राइटी हूँ, इस वजह से। और बॉल को हम लोग, जैसे ये बॉल ऊपर गया है तो हम यूँ कैच करते हैं, तो हमने देखा ही नहीं कि बॉल आपके हाथ में लगा है। सम टाइम विंड तेज़ चल रही होती है और बॉल का जो एंड है जिसको आपने यहाँ पे देखा है वो हो सकता है आपके हाथ में लगने तक वो थोड़ी सी जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि विंड तेज़ होती है। सम टाइम आप फील्डिंग कर रहे हो तो वो आपकी फिंगर्स पे लग के कभी गिर जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बॉल ऐसे आ रहा है तो आपने यूँ देखा और हाथ आपके राइट टाइम पे बंद होने चाहिए, क्योंकि जो दो थंब हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है बॉल को कैच करने के लिए। थोड़ा एक्सप्लेन करें। ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं मलिक ने, मैं थोड़ा सा इसको ऐड करूँगा। देखिए जो बेसिक टेक्निक जो इसने बताई है कि एक तो आप नंबर 1 यू गॉट टू गेट अंडर द बॉल क्विकली, जल्दी आप जितना नीचे पहुंच जाए ताकि वो थोड़ी देर का आपको टाइम मिले बॉल के नीचे। ऊंचा कैच गया है तो आप पहले नीचे आके सेटल हो, जितना आप जल्दी ग्राउंड कवर करेंगे ताकि और दूसरी चीज़ पोजीशन ये नहीं है आपकी कैच के नीचे, चाहे सीधा भी है नहीं, यू गॉट टू बी इन अ पोजीशन। ये जो भी स्ट्रॉन्ग लेग, उसने कहा लेफ्ट हैंडर है, अगर उसकी लेफ्ट लेग स्ट्रॉन्ग है तो इस पे आपने पावर बनाया। अगर राइट हैंडर हूँ मैं और मैं नॉर्मली ये पोजीशन मेरी, तो मैं ये बनाऊँगा ताकि मैं राइट लेफ्ट कहीं पे भी मूव कर सकूँ। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ऊंचे कैच पे जो गलती करते हैं हम, फिंगर्स जो आपकी कभी भी बॉल की तरफ पॉइंट नहीं होनी चाहिए आपकी, उसमें हम यूं करते हैं, बॉल हल्का सा भी डेविएट होता है, हो गया जी। तो इसको फिंगर्स आप ये पाम ये दिखाते हैं ताकि बॉल अगर थोड़ा सा भी डेविएट हो रहा है तो आपके इधर लगे, हाथ में लगे बॉल। यूं करेंगे तो बॉल यूं होगा तो आपकी फिंगर पे लगेगा और बॉल निकल जाएगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मलिक कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ पकड़ा है बॉल तो मैं आई हैव नो चांस, मुझे कोशिश करने के मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ से गेंद को लूँगा एंड देन इस पोजीशन की वजह से हाथों को थोड़ा सा जो ऐसे कीपर करते हैं ना गैदर, कि ये उसको मैं लेके आऊँगा ताकि वो लग के निकल ना जाए बॉल की पेस भी कम हो जाएगी उसकी। बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मैं रोक लूँगा हाथ और उसकी पेस है या बॉल स्पिन करके आ रहा है, यहाँ मैं रोकूँगा, वो लगेगा निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं गैदर उसको थोड़ा सा उसको साथ ले के आऊँगा, वो स्पिन या उसकी पेस, उसको मैं वो जैसे शॉक एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो करेंगे तो वो बॉल आपके हाथ से नहीं निकलेगा। शेबी, वन मोर क्वेश्चन, ग्राउंड फील्डिंग की बात कर लेते हैं। ग्राउंड फील्डिंग में एंटिसिपेशन, अब कई मैं लड़के देखता हूँ आजकल की क्रिकेट में, नॉट जस्ट जनरली, कि अब आप मिड ऑफ पे खड़े हैं, मिड विकेट पे खड़े हो, आप बस खड़े ही हो, आप स्टार्ट ले रहे हो, बट अगर बॉल आपकी तरफ आया, आप बजाय के बॉल को अटैक करो, आप ऐसे ऊपर से पड़ते हो। वाई ये आपको बॉल को अटैक करना चाहिए ना। देखिए वसीम भाई, सबसे पहले जो है ना, फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब आप फन करते हैं ना फील्डिंग करते हुए एज अ फील्डर, तो आप बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। Sure. क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो मैंने फील किया है, जब आप फील्डिंग कर रहे हो, सम टाइम अगर आप बैट्समैन हैं तो आप अपनी बैटिंग के बारे में सोच रहे होते हो, ठीक है, एकदम आपके पास बॉल आ जाता है और आप को समझ नहीं आती है। या अगर आप बॉलर हो, आपको पहले 1-2 ओवर्स में मार पड़ी हुई है तो आप उसके बारे में सोच रहे हो यार वो, हाँ, तो वो नहीं करना है आपने ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ करना। फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं राइट साइड पे तेज़ मूव करता हूँ या मैं लेफ्ट साइड पे तेज़ मूव करता हूँ। स्ट्रॉन्ग साइड क्या है? जी, जो आप कौन सी आपकी स्ट्रॉन्ग साइड है, ठीक है। मैं लेफ्टी था तो मेरा लेफ्ट साइड ज़्यादा तेज था, इफ़ आई रिमेंबर, दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, बट आई वाज क्विकर दैट वे देन दैट वे। मैं राइट हैंडर हूँ, लेकिन मैं लेफ्ट साइड पे तेज़ मूव करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को थोड़ा मार्जिन देता हूँ कि मैं यार राइट साइड पे थोड़ा ज़्यादा वो रहूँगा, ताकि मैं लेफ्ट पे तेज़ मूव करता हूँ। लेफ्ट पे कवर कर लूँगा, यू मीन लेफ्ट पे मैं कवर कर लूँगा। दूसरा, अपने बैट्समैन को देखना है कि यार अब सम टाइम 2 बैट्समैन खेल रहे होते हैं, एक स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलता है, एक डाउन द ग्राउंड अच्छा खेलता है। तो वो अपने आप को अपनी पोजीशंस को देखना है कि यार जो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है उसकी दफ़ा में मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ रहूँगा, क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है। जो डाउन द ग्राउंड खेलते हैं मैं उनकी तरफ से
उनके जब वो खेलेगा तो मैं सामने चला जाऊंगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये अगर हम करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। मैं इसमें ऐड करूंगा, जो मलिक ने ये बात की है ये इतनी इम्पोर्टेंट है, जो हम जैसे हम रनिंग करते हुए बात करते हैं कि जजमेंट। मैं कहता हूँ कि मेरे से बहुत अच्छे रनर्स थे, कई और लोगों में राना टोंगा, मतलब वो क्विक मूवर नहीं था। असल चीज़ आपकी जजमेंट है। जजमेंट जब आपकी ठीक होगी उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान। फील्डिंग, एंटिसिपेशन के लिए ये जो चीज़ें कह रहा है कि मुझे पता है ये बंदा सॉफ्ट खेलेगा इस बॉल को, बॉल किस पेस पे आ रही है, बॉलर की पेस क्या है, ये अंदर जाएगा बॉल या स्क्वायर ऑफ द विकेट जाएगा या सामने जाएगा। मैं कहीं पे भी फील्ड कर रहा हूँ तो आई शुड नो दीज थिंग्स बिफोर वो बैट्समैन खेले, एंड देन एंटिसिपेट अगर मैं करूँगा तो मैं अपने ब्लॉक से जल्दी निकलूँ। फॉर इंस्टेंस शुएब मलिक आया बैटिंग करने, ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, अर्ली ऑन पहला ओवर खेल रहा है, अभी से इसकी बारी आ गई 10वें ओवर में। ऑब्वियसली आता तो चिके नहीं मारेगा ये, मुझे पता है एज अ फील्डर मैं डाउन पे खड़ा हूँ, मैं तो मैं 2-3 कदम आगे आ जाऊँगा ताकि दुक्का ना हो। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो सिचुएशन अवेयरनेस है, ये कप्तान तो नहीं सिखाएगा, ये तो लड़कों ने खुद सीखनी है। बिल्कुल। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी आप दोनों ने कैचेस की बात की और कैचेस पे आपने जो है वो कैच रिसीव करने का जो है तरीका बताया। हम देखते हैं बाउंड्री के ऊपर अक्सर जो है वो कैच इस तरह भी रिसीव किया जाता है। हाउ डू यू जज एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेक्निक देयर? टेक्निक है ये खुद उस पे डिपेंड करता है फील्डर पे कि वो कैसे कंफर्टेबल है। फॉर इंस्टेंस मैं एक बता दो, देन यू कैन एक्सप्लेन। फॉर इंस्टेंस अब कैच आ रहा है ना, आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, कैच आ रहा है, अब ऐसे ऐसे जा रहे हो, वो कई दफ़ा आपका कैच ऐसे जब यहाँ इस साइड पे आता है तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू चेंज। राइट, सो दैट्स यू मेक depends on मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली हम स्लिप में फील्डिंग करते हैं तो हम इस पोजीशन में होते हैं तो हम ये वाले कैच यहाँ से यूँ करते हैं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग स्लिप पे भी अगर फील्डिंग कर रहा होता था, इवन यहाँ पे भी आता था, तो वो इस पोजीशन से यहाँ होके ये यहाँ से उसने, मैंने खुद हमारे खिलाफ सीरीज़ में उसने कैचेस पकड़े हैं। मतलब बेसिक्स आपने ठीक करनी है। इसमें भी अगर मेरी फिंगर्स पॉइंट करेंगी बॉल को, अगर ऊपर से आ रहा है और मैंने यूँ कर दिया उसको, फिर वही चीज़ है कि आपने वो पूरी पाम्स उसको दिखानी है बॉल को, चाहे वो यूँ करें या यूँ, उसको आपने रिसीव यहाँ करना है मिडल में। अगर आप उसमें बेसिक में गलती करेंगे देन ऑब्वियसली you are in trouble. All right, fantastic, guys. Thank you very much. Thank you. Truly appreciate it, Shoaib and Misbah. Or with that, we move forward now and more exciting things to share with you. Gee, you can come back to your seats. Thank you very much. Truly appreciate it. और इसके साथ ही it's going to take you to the fall of wickets brought to you by Coca. Right, there you saw the fall of wickets. शोएब, ये जो आखिरी शॉट आपने देखा है वो जो सबसे दूर वाला कोना था जिसकी कल मिसबा भी कह रहे थे जहाँ पे सोहेल खान ने चौका करवाया था, उस तरफ उन्होंने जो है वहाँ पर खेला है। एंड आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू प्ले स्क्वायर। लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू प्ले स्क्वायर बिकॉज़ करीबी बाउंड्री थी। आप जस्ट इसके क्वेश्चन को लंबा करो थोड़ा कि एज अ बैट्समैन जब तुम जाते हो या एज अ टीम, आप लोगों के जेहन में होता है कि ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है? बिल्कुल होता है वसीम भाई, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बड़ी बाउंड्री है या बिग पॉकेट्स हैं, शायद वो सूट करती हैं मेरी गेम को, मैं उनको ज़्यादा टारगेट करता हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं कि बॉलर्स वहाँ पे बॉल करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप बड़ी साइड की तरफ आप हिट करो ताकि आपके आउट होने के चांसेस हों। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जहाँ बॉल है उसी तरफ खेलूँ। अच्छा, और वो उससे ये है कि मुझे काफ़ी सारी सक्सेस भी मिलती है। फिर वो ऑटोमेटिकली जब बड़े बिग पॉकेट्स में आपको बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं और आप वहाँ रन्स बना रहे हैं, इवेंचुअली वो छोटी बाउंड्री की तरफ आ जाएंगे। ह्यूमन नेचर है ये। एक और क्वेश्चन जो हर एक पाकिस्तानी के जेहन में होता है, बिकॉज वी लव आवर क्रिकेट, व्हेन वी सी प्लेयर लाइक बेन डकट, यू सीन रिसेंटली, हाउ डिफिकल्ट वाज फॉर स्पिनर्स टू bowl at him? You can't set field for him. How come? This is a $1 million question. How come? Okay, I can understand you are most experienced, you know your game, you know your weakness, you know your strength. I mean, आप लेट 90s में क्रिकेट शुरू की, अर्ली 20s में शुरू की, बट हमारी क्रिकेट में
मैंने कभी किसी को रिवर्स लैप नहीं मारते देखा, कभी किसी को छोटी स्वीप नहीं मारते देखा. यू नो वी इफ आई एम प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, एज आई एम जनरली सेइंग, आई नो कि इन्होंने ये नहीं मारना, इन्होंने ये नहीं मारना, इन्होंने अच्छी शॉटें मारनी है, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग. वो मेरे बाद मारनी छोड़ दी उन्होंने. 2007 लास्ट टू ही था भी वो. 2007 के फाइनल के बाद मारनी छोड़ दी. Oh, that shot. Now I remember. No, but on a serious note, this is part and parcel of. लोगों ने देखा है ना कि यार इसको नहीं जीने दे रहे तो हम ना ही मारा तो बेहतर है. हाँ, that's a fair call. हमारे छोड़ते भी तो नहीं ना. हमारे फैंस बदला लेते रहे पूरा एंड तक जाके. नहीं एंड तक नहीं बॉस, वो भूलते हैं, 20 साल बाद भी वो याद रखेंगे. जो 15 चौके मारे थे मैंने पहले, वो किसी को याद नहीं है उसके. I know. I remember how heartbroken you were, Shoaib, when we lost that final. I remember how heartbroken you were. We all were, yeah, everybody was. He probably was the. He was. ये तो उसी वक्त crash हो गया ना वहीं पे सर नीचे रखे. We don't realize the person who played that shot. Imagine what must have he gone through after that. बिल्कुल ऐसे ही. So वसीम भाई, इसका मकसद बात करने का ये है कि I mean आप बैक करें किसी को. इंग्लैंड में वो बैक करते हैं, वो आउट भी हुआ है, वो कितनी दफा आउट भी हुआ है इसी शॉट पे, फिर भी वो एक मारेगा चौका अगली बॉल पे, फिर मारेगा, मिस करेगा, फिर वो मारेगा. बेसिकली इनकरेज आप तभी करेंगे अगर आप इस तरह, आप ड्राइव पे भी तो आउट होते हैं, फिर आप बाद में छोड़ दें, हमारी कट शॉट नहीं मारेंगे, पुल फिर कोई शॉट नहीं मारोगे, फिर यही होएगा 112. नहीं, अब तो इतना टाइम है कि ऐसी शॉट पे बंदा बच्चा हमारा 6-6 दिन ट्रेंड करता है सोशल मीडिया. बिल्कुल. एंड मेंटल हेल्थ के लिए कितना डैमेजिंग होता है वो. आई एम सीइंग जब से आप लोग पिछले साल भी पेविलियन में, स्पेशली व्हेन वी लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, and the bashing that was going on, I don't think that's a healthy thing for a player anywhere in the world. I say all along, we don't need enemies. We don't need enemies. मैं आपको थोड़ा सा साढ़े अपने ही बड़े ने साढ़े लिए. मुझे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जब तुम्हारी सामने लग रही थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी. मैंने कहा मेरी तो वो सब तो ज्यादा लग रही थी, जिंदगी कभी मिस नहीं थी, जिंदगी में मैंने वो शॉट कभी मिस नहीं किया था. तो सामने अगर सामने 4 फील्डर बाउंड्रीज पे खड़े हैं तो वो भी तो उसी तरह ही चांस है ना, वो भी तो आप कैच हो सकते हैं. तो ये भी तो लेकिन मतलब उस दिन सर आपके छिक्के वो सीढ़ियों में जा रहे थे और कप्तान बोले हार मारने को तैयार. मैच का कप्तान बोला है, उस मैच का कप्तान बोला है. नहीं ये अच्छा किया इन्होंने शुरू किया, और ये अच्छा है इन्हीं के थ्रू, क्योंकि ही वाज देयर ऑन द पिच. ठीक है, तो ये सबसे अच्छा जवाब दे सकते हैं. वो जो आपके लैप शॉट्स थे, वो आया तेज बॉलर को खेलने चाहिए या मीडियम पेसर को भी खेल देना चाहिए जो बहुत ज्यादा वेरिएशन कर रहा हो, क्योंकि लास्ट ओवर जो है ना वो कर रहा था सबसे जिसकी पेस. मेरे से इतने जोगिंदर शर्मा नाम, ये मेरे से इतने सवाल हुए हैं वसीम भाई, यकीन करें. मैं उस टाइम पे जब खेलता था, इवन स्पिनर भी अगर बॉल कर रहा है ना और फाइन लेग सर्कल में खड़ी है, तो मैं उससे भी ऊपर फ्लाइट बॉल को भी ये मार देता था. तूने मारी है? मैंने एग्जीक्यूट गलत किया है. देखिए एग्जीक्यूशन गलत थी. आप जब ये शॉट मारते हैं, डिस्करेज नहीं करना किसी भी अपने बंदे को, उसको बताना है कि गलती क्या हुई है, एग्जीक्यूशन में गलती हुई है. व्हेन यू लेट द बॉल कम क्लोज टू यू, जब डिग करेंगे तो ऊपर जाएगी, वो लंबी नहीं जाएगी. आपको पुल की तरह बॉल को जल्दी रिसीव करना है, पहले रिसीव करना ताकि वो फ्लैट जाए और ज्यादा दूर जाए. कोई बात नहीं करता, कहते हैं एक्सिक्यूशन कर दो यदि. आपका क्वेश्चन था ना, उसमें मैं इन्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ इस चीज़ पे, ये जो क्लैरिटी है जो इन्होंने बात शुरू की, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है. क्लैरिटी कहाँ से आती है? क्लैरिटी देखें, हु इज रनिंग द शो. ओके, द क्लैरिटी कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. बट यहाँ पे इशू ये है कि वो क्लैरिटी देने वाले 4 लोग हैं और उनकी आपस में ज़रा सही से नहीं बनती है. जैसे फर्स्ट हमारी T20 में मैंने एक अपने लड़के को पूछा पिछले साल, मैं कहा तुमने परफॉर्मेंस तुम्हारी खास नहीं गई, ओपनर है वो. उसने कहा जी मेरा कोच मुझे कहता था कि खुल के खेल और लंबा खेल. अब ये मैसेज का मुझे एक्सप्लेन कर दो. वी ओवर खुल के खेल और लंबा खेल, मतलब उसको ड्रा भी दिया है और उसको कह भी दिया है कि शॉट ही मार मगर आउट भी नहीं होना. हाउ इज दैट पॉसिबल? निकल के मारना बस, स्टंप नहीं होना. एग्जैक्टली. ये पॉसिबिलिटी है वैसे. ये पॉसिबिलिटी है अगर आपकी आंखें बंद हो और आप ख्वाब में देख रहे हो कि आप मार भी रहे हैं और आउट भी. मसला वही है ना वसीम भाई कि फॉर दैट सॉर्ट जिंदगी में आपको रिस्क लेना है. रिस्क लिए बगैर आप तो रिस्क में आप नाकाम भी होंगे,
आप उसको तो आप ऑन नहीं कर रहे, Yeah. छक्का बज जाए तो मैं से हंसी, और अगर वो आउट हो गया तो देन मैंने क्या सिना नहीं मार रहे। Yeah. तो ये जो है ना, ये कल्चर मेरे ख्याल में ये चेंज All right, with that, it's time for the man of the match, brought to you by Continental Biscuits. और इसके साथ ही वक्त हुआ है बेस्ट बॉलर का, brought to you by McDonald's. McDonald's app. My diet is going to go through the window. With thank you, Wasim. What diet? Thank you very much. पूरी Faizan, thank you. देख दाल चावल दिखा के आया। मैक दाल चावल वो भी दाल माश। बोल दो, सब लोग बोल दो। अभी तो खाने शुरू नहीं हुए, अभी तो हम वेट कर रहे हैं वकार यूनुस का, वकार आ जाए तो उसके बाद फिर खानों का सिलसिला शुरू होगा। और इसके साथ ही वक्त हुआ है सेफ हैंड्स का, brought to you by Jubilee Insurance. Game changing moments, brought to you by Pepsi Cola. या गेम चेंजिंग मोमेंट्स बाय लेज, बट मैंने पेप्सी इसलिए बोला था क्योंकि लेज जो है गालिबन पेप्सी वाले ही ओन करते हैं, और मुझे ये बताया गया था कि पेप्सी ने किया है ब्रांड इस सेगमेंट को, तो मैं माजरत चाहता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने पेप्सी है, लेज है, पता नहीं क्या है, मुझे इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी। एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट, एंड विच इज सुपर मोमेंट्स, brought to you by जैज, एंड टाइम फॉर रिफ्रेशिंग मोमेंट्स, brought to you by तपाल। बिल्कुल जनाब, तुम, मैं और एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। देखते रहिए द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड ARY ऐप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड ARY ऐप। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का बाकायदगी से आगाज हो चुका है और 2 बेहतरीन क्रिकेट मैचेस आज हमने देखे हैं। अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे दूसरे मैच की, जो कि नीदरलैंड्स बामुकाबला मुत्तहिदा अरब अमीरात था। अब बात करते हैं पहले मैच की, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपसेट हुआ है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ है। श्रीलंका जो अभी हाल ही में एशिया कप जीत कर इस वर्ल्ड कप के लिए गई थी, जिसके पास मोमेंटम था, हम बात कर रहे थे कि जिस टीम के पास मोमेंटम होगा उसको बड़ा फायदा होगा, बट देव जस्ट बीन शॉक्ड बाय नामीबिया, एंड without doubt one of the biggest days in the history of Namibian cricket. Congratulations to the Namibian fans and everybody back in Namibia. Let's take a look at the scorecard before we talk about this. This is how it went down. Namibia ने पहले बैटिंग की है, 163 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। Now ये जो इनिंग्स है फ्राइलिंग की सबसे ऊपर 44, what great strike rate there, देखने वाली बात है। एंड देन ऑफ कोर्स स्मिथ की भी जो इनिंग है वो भी बड़ा शानदार उनका जो है स्ट्राइक रेट रहा, 193% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है। बॉलिंग में प्रमोद was there, but what is surprising is that they were really good with वनिंदू, द मेन स्ट्राइक बॉलर जिसके बारे में हम बात करते रहे उनके बारे में कि जी वो बड़े ही ज़बरदस्त बॉलर हैं हसरंगा, और उनको खेलने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ज़रा बैटिंग कार्ड देख लेते हैं श्रीलंका। चेसिंग दिस टोटल, दिस इज़ व्हाट वेंट डाउन फॉर श्रीलंका। दे केम आउट, दे वर पुट अंडर, सॉरी, दिस इज़ द नामीबियन बैटिंग कार्ड। It's the last 5 overs where they made the impact. Yeah, they were 93 for 6. Absolutely. Namibia, 93 for 6, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से फास्ट बॉलर को ज़्यादा फड़कास पड़ी, आई सपोज हसरंगा को 4 ओवरों में 27 हुआ, उसने थोड़े से गुलतारे छोड़े होंगे, बट इट अपीयर्स टू मी व्हेन दे केम आउट टू बैट दे वर वेरी इजी, दे थॉट वी गोना विन दिस इजीली, बट ऑब्वियसली नमीबियन टीम हैड अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट प्लान ऑल टुगेदर। और मिसबा, आई रिमेंबर हिज वर्ड स्टिल बिफोर इन द मॉर्निंग, ही सेड कि 160 विद नमीबियन बॉलिंग और बैक ऑफ अ लेंथ स्लो मीडियम पेसर, ये इनको तंग करेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। मुझे मैंने उस वक्त ये कहा था कि 140 इवन दे कैन पुट अ फाइट। इस पिच पे उनकी जिस किस्म की बॉलिंग है, चैलेंजिंग हो सकता है श्रीलंका के लिए। ये 163 हुआ है, और जिस तरह पिच बिहेव कर रहा था, तो आई थॉट कि अब तो। और आपकी बात दुरुस्त है, चूंकि अगर 140 भी होता वसीम, तो जो मार्जिन है 50 रन के मार्जिन से हारे हैं तकरीबन ये लोग। ये रन रेट पे भी आएगा इस पे। जी बिल्कुल। बट नाउ वन क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ अस एंड ऑफ कोर्स ऑल द व्यूअर्स पाकिस्तानी फैंस, कि अगर श्रीलंका ये हार गया मैच, ठीक है, फॉर इंस्टेंस नामीबिया अपने ग्रुप में नंबर 1 पे आ जाता है फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, और उधर से वेस्ट इंडीज़ अपने ग्रुप में नंबर 1 पे आ जाता है, सो इट मीन्स श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज़ विल इन पाकिस्तानी ग्रुप इन सुपर 12s। It can happen. That's right. आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए आपकी टीम का
इफ़ योर गोल इज़ टू विन द वर्ल्ड कप, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने सिर्फ जो है आगे क्वालिफाई करना है और उसके लिए जाना है, देन यू हैव टू बीट ऑल द टीम्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को आप बीट करेंगे तो फिर ही ट्रॉफी आपको मिलनी है। तो मेरे ख्याल में ये जो नेगेटिव थॉट है, ये एज ए टीम हम तो सोच रहे हैं, ज़ाहिर है फैंस हैं जो वो सोच रहे होंगे कि रिलेटिवली अगर थोड़ा इजी मिलेगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आगे ऊपर चले जाएंगे। बट आई थिंक प्रीवियसली अगर आप देखें जितनी टफ सिचुएशन से जो टीम निकल के आती है, टफ मैचेस खेलती हुई आती है और अपोजिशंस को बीट करती हुई आती है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रॉफी जीतने के लिए आपको हर टीम को बीट करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी कि हमने सारे मैच जीतने हैं। ये नहीं कि श्रीलंका आ गई और श्रीलंका आई थिंक विद द बॉलिंग अटैक जिसने उनको आज लेट डाउन किया उनकी फास्ट बॉलिंग ने। पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग अटैक इज़ डिफरेंट। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मेरे ख्याल में one of the top bowlings this time जितनी भी है। Good point you bring up, because Chameera we were hoping is going to be an impact player for Sri Lanka. Couldn't deliver. In fact, look at his economy rated in 9. Went for almost 10 and over. Went for almost 10 and over. Could be lack of match practice because he was injured before the Asia Cup. True. Could be that. But no doubt he's got pace, he's talented, he can improve. But this is a massive shock to all the cricket lovers. We have to. Bibia ने बेशक runs बना दिए थे 163. लेकिन इफ़ यू लुक एट श्रीलंकन बैटर्स, आई गेस उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होना था। लेकिन मैंने जो मैच में देखा, मुझे ये लगा कि अगर हम इनके निसांका, कुशाल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा आप देखें, इनके जो स्ट्राइक रेट्स हैं, इट शोज़ कि उनका इंटेंट जिसकी हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो नहीं था। और उसमें ये था कि हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि यार थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फेमिलियर होते हैं कंडीशन से, ताकि हमें मूविंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट वो उस चीज़ का हेल्प मिलेगा। यहाँ पे ये हम गलती करते हैं। और हमारे जो मोस्टली सब कॉन्टिनेंट में ना ये कल्चर है, हमारा ग्राफ मोस्टली टीम्स का वो अप एंड डाउन इसलिए रहता है कि हम देख लेते हैं। हम थोड़ा सा ना अपने लिए जो है ना वो खेलते हैं। प्रायोरिटी होनी चाहिए इस फॉर्मेट में, यू प्लेइंग फॉर द टीम रिगार्डलेस यू प्लेइंग योर फर्स्ट गेम और यू प्लेइंग योर फोर्थ गेम। So you are saying it's you better to get runs 40 of 18 deliveries than 50 or 40. Exactly. देखें डेविड विजे ने बॉलिंग की नए बॉल से, उन्होंने 4 ओवर में 16 रन दिए, 2 आउट किए। तो डेविड विजे को हम खेलते हैं डे इन डे आउट, ठीक है, वो हमारे पीएसएल का शुरू से हिस्सा है। उसकी पेस को हम जानते हैं, ठीक है। तो उसकी पेस को ये नहीं है कि आप जैसे मीडियम पेसेस को आप खेल रहे हैं तो आप क्रीज में ही रह के खेलें, आपको थोड़ा सा हिलना जुलना, उसकी लेंथ को डिस्टर्ब करना है ताकि वो आपको रन्स बना के दे सके, आपके स्लॉट में आ सके। क्योंकि ये तो हमने देख लिया दोनों मैचेस में कि पिच जो था फ्रेश था, ड्रॉप इन पिच था और बॉल कुछ कर रहा था, सीम हो रहा था बॉल, ठीक है। लेकिन आप वो देखें कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्रीज में रह के खेलते रहे उसको। जी, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हुआ उनका। उन्होंने कहा कि यार हम थोड़ा सा टाइम ले लें। तो फिर जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, इट्स टाइम टू गो, तो वो शॉट्स नहीं लगे क्योंकि पिच जो था वो अलाउ ही नहीं कर रहा था कि आप फ्रीडम के साथ खेलें, अनलेस आप अटैक को बैकफुट पे डालते फ्रॉम बॉल 1। Talking about the attack, sorry Misbah, I'll interject you in this for a minute. Let's talk about Freiling. Freiling ने जो बैटिंग की है, 157 का स्ट्राइक रेट था, इंटेंट थी, 44 रन उन्होंने 28 गेंदों पे किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी। और अगर आप देखें जो आप बात कर रहे हैं, जो मिसबाह शोएब मलिक बात कर रहे हैं, वो आपको नजर आएगी इनकी बैटिंग के अंदर। देखिए बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त खेले और ये शॉट्स आप चेक करें, क्यों ये शॉट्स वो खेल रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ हमेशा क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है वो साउथ अफ्रीकन है। आप साउथ अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को कभी भी देखेंगे, उसका दोनों पैर स्टेबल हैं, पावर पोजीशन में है और उसके बाद उसका हाथ घूम रहा है। हम क्या करते हैं, हम ऑन द मूव होते हैं और हमारी जो अगली टांग जो बेस बनती है वो लेट बनती है, बॉल हमारे पास आ जाता है। बाउंसी पिचेस पे आज श्रीलंका ने स्ट्रगल किया। इवन राजापक्षा ही वाज स्ट्रगलिंग विद दैट बाउंस एंड पेस, बॉल उसके बल्ले के ऊपर लग रहा था क्योंकि हमारी टेक्निक्स डिफरेंट है। वो जो पार्टनरशिप थी जे स्मिथ की और फ्राइलिंग की, दैट बेसिकली टुक द गेम अवे और उन्होंने उस यूटिलाइज़ किया, उनकी लेंथ बॉल्स को
उन्होंने कैश किया क्योंकि वो रेडी होते हैं। उस लेंथ बॉल को जब आप हिट कर देते हैं, बॉलर अंडर प्रेशर होकर फिर या पीछे करता है या बहुत ज़्यादा आगे कर देता है। तो ये उनको एडवांटेज है जो मुझे लगता है श्रीलंकन जैसे से बात की, they were done with the conditions. But Misbah, this takes me to a very pertinent question, though it's not related to this game. But आप अगर इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो फिर क्या ये पाकिस्तानी और इंडियन बैट्समैन के लिए भी चैलेंज होंगी ये विकेट्स? देखिए चैलेंज होगा, लेकिन इंडियन बैट्समैन और जो पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर है वो नहीं है जो बाकी टीमें हैं। दे बेसिकली प्ले दैट बाउंस वेल। ठीक है, एक दो वो आउट हो गए, लेकिन साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंसेस देखें, रिजवान की देख लें, बाबर आजम की देख लें, वहाँ पे इवन नोकिया 150 पे बॉल कर रहा था और उसको वो सामने चौके मार रहे थे दोनों तरफ। तो रोहित शर्मा आप बुली नहीं कर सकते उसको, केएल राहुल को शॉर्ट बॉल पर बुली नहीं कर सकते, वो आपको मारते हैं। इवन विराट कोहली, दे आर इक्वली गुड ऑन फ्रंट फुट एंड बैक फुट। सो वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो उन्होंने वहाँ रन्स किए हुए हैं, यही हमें एडवांटेज है। और अगर फ़खर 3 पे खेलता है या इवन शान मसूद 3 पे खेलता है तो वो भी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, वो जैसे साउथ अफ्रीका में फ़खर रन्स करके आया, उसने एक मैच अकेले ही वो 350 चेस कर चला था और पुल्ले वो मार रहा था। तो ये एडवांटेज है हमें। लेट ऑर्डर में हमें प्रॉब्लम ज़रूर होगी, जो हमारे लेट ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको प्रॉब्लम लेट मींस मिडल ऑर्डर लेट। लेकिन वहाँ पे भी जैसे अब शॉर्ट बॉल को अगर आप देखें थोड़ा सा, शादाब बहुत अच्छा खेलता है नीचे से आके, फिर आपका इवन नवाज ने जिस तरीके से बाउंस को, लेंथ बॉल इज हिज स्ट्रेंथ बेसिकली। कट भी for us and Pakistan team, I suppose Haider Ali got some runs in the last game, or crucial runs. 31 run 15 But गेंदों पे। Haider Ali obviously is very talented. We all know that. Ability है उसमें, शॉटें मार सकता है. But again, presence of mind, situation awareness. अब जैसे इंग्लैंड के खिलाफ एक दो मैचों में एक बॉलर उन्होंने लेके आए हैं, एक बॉलर आसिफ और उसके लिए वुड को एक ओवर के लिए। अब आपको पता है कि अगर मैं वुड को लेके आया, आपको पता है कि आपको आउट करना चाह रहा हूँ मैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए उसको कोशिश ये करेंगे स्ट्राइक रोटेशन रहे, अगर वो मेरे स्लॉट में बॉल कर दे मैं उसे क्रिकेटिंग तो शॉट मारूंगा। बिल्कुल उसमें अगर बाउंड्री ले लें, मुझे पता है क्या लगता है वसीम भाई, मिडिल ऑर्डर जो है ना, बैटिंग जो है ना वो एक आर्ट है। यस, ठीक है, बैटिंग एक आर्ट है। तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ये लगता है, जो कि मैंने देखा भी है, जितने भी मैचेस देखे हैं, वो ये करते हैं कि वो एक साइड तो यूज ही नहीं करते ग्राउंड की, वही खड़े रहते हैं, ऑफ स्टंप पे वो खेलते ही नहीं है। हाँ। और देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको 2 से 3 अच्छे बॉलर्स मिलेंगे दूसरे के अटैक में, लेकिन इंटरनेशनल में आपको 5 अच्छे मिलेंगे। इवन जो उनका छठा बॉलर आएगा वो भी अच्छा होगा। बिल्कुल। तो जब तक आप उनको पूरा ग्राउंड यूटिलाइज नहीं करेंगे उनकी अगेंस्ट, वो आपसे हमेशा मिड ऑन या मिड विकेट पे चिक्का नहीं खाएंगे वो आपसे। तो ये सेइंग, जैसे तू कह रहा था कि हल्का सा हट के, जरूरी नहीं कि हिट मारनी है, आप रूम इधर भी दो और रूम इधर भी, आपको दोनों तरफ शॉटें मारो आप। वसीम भाई देखें, अगर मुझे सिंगल बनानी आती है, दैट डजंट मीन कि मैं अपनी पावर हिटिंग पे काम नहीं करूंगा, मैं करूंगा उस पे, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ को नहीं भूलूंगा। पर फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट भी है, वो ये कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, वी आर हियर टू सपोर्ट आवर टीम, बट 17th ओवर है फॉर इंस्टेंस, तुम खेल रहे हो 70 और नॉट आउट, वाई टेक अ सिंगल, वाई बाकी विकेटें घर लेके जानी है जो बाहर बैठे हैं? देखिए उसमें वसीम भाई बहुत सिंपल है। अब अगर ओवरऑल देखें ना, 120 बॉल है जो 20 ओवर्स होते हैं, उसमें कभी ऐसे नहीं होता कि 30 बाउंड्रीज लग गई, 40 बाउंड्रीज लग गई। बाउंड्रीज जो है ना वो आपकी यही लगती है 15 लगेंगी या कभी 12 लगेंगी, लेकिन जो बाकी के बॉल्स हैं ना वो डॉट नहीं जाने चाहिए। बाउंड्रीज अगर आप देखें 24 से 25 बाउंड्री होती हैं, यहाँ 26-27 लग जाएंगी। वो भी अगर आप बहुत अच्छी पिच पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छी पिच पे खेल रहे हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें आप देखें, जब आप डॉट बॉल खेलते हैं ना, अब आपने पहले बॉल पे बाउंड्री मारी, ओवर के पहले बॉल पे, अगली 3 पे अगर आपने रन्स नहीं बनाए तो आप तो सेम जगह पे खड़े हो गए ना जो बॉल 1 पे आप खड़े हुए थे। तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत अच्छा हो सकता है। जो सेम बॉलर आपको तंग कर रहा है, आपका जो पार्टनर है जो आपके साथ बैटिंग कर रहा है, उसके लिए वो आसान हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मसला ये है कि जो शोएब बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए देखें, आपको पूरे जो प्रोडक्ट है, जो आपने वो अपना प्रोसेस बनाना है, वो उस तरीके से बनाना है कि अच्छा यार मैं रेडी हुआ हूँ, नाउ
मेरे पास ऑप्शंस हैं कि यहाँ बॉल आएगा तो मैं इधर खेलूँगा, इधर आएगा तो इधर खेलूँगा, इधर। जब आपके जहन में एक ही चीज़ है कि मैंने सिर्फ यहाँ मारना है, तो उसमें अगर उसके अलावा कोई बॉल आ गया तो आप आउट है, क्योंकि आप बाहर वाले बॉल को, कट वाले बॉल को भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं मिड विकेट की तरफ घुमाऊँ, तो खड़ा हो जाएगा वो बॉल, वहीं पे आपकी वो शॉट कनेक्ट नहीं होगी। जो प्रॉब्लम आसिफ की और हैदर की टेक्निकल जो इशू में आपको थोड़ा सा देखिए, हम पाकिस्तान में कई दफ़ा हमें क्योंकि बाउंस नहीं होता तो हमारी जो वेट होता है वो हल्का सा, हम बॉल को नीचे से घुसने के लिए, मारने के लिए हल्का सा हम उसको एलिवेशन के लिए वेट पिछली टांग पे ले के जाते हैं, जैसे धोनी मारता था वो हेलीकॉप्टर शॉट, तो उसमें हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। पिछला बॉल भी टाइम मिल जाता है तो वो पिछले कदम पे भी कई दफ़ा उसको हम ले जाते हैं, गो कि वो भी उस तरीके से नहीं जाते जैसे वुड पे हम आउट हुए। इन पिचेस पे जब तक आपकी दोनों टांगें स्टेबल नहीं हो जाएंगी, जैसे ही आप रेडी पोजीशन पे आए हैं, बॉल क्योंकि पिछला आपकी तरफ तेज़ आना है, आपको बहुत जल्दी इसको स्टेबल करना है ताकि आपके पास टाइम हो कि आप अपने बाजू को तेज़ स्विंग कर सकें। और आपकी हैंड स्पीड और आर्म स्पीड बहुत ज़रूरी है इसमें। हम लेट होते हैं, हमारे हाथ पीछे जाते हैं, ये टांग लेट हमारी नीचे होती है, फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, बॉल यहाँ कनेक्ट होने की बजाय यहाँ कनेक्ट होती है, तो वो दूर रही। अगर हम आसिफ की वो इनिंग्स दिखा सकते हैं जो उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 4 बॉलों पे 4 छक्के मारे थे, पिछला वर्ल्ड कप की बात कर रहे जी, हैं। लास्ट जो वर्ल्ड T20 हुआ है, उसमें आप देखेंगे बैलेंस उसका, कि जहां बॉल था उसने उस तरफ शॉट मारा था। आई रिमेंबर दैट। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहां बॉल है उसको उधर खेलने की कोशिश करो, तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, रिस्क कम होगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी जिस तरफ बॉल है। क्योंकि आजकल के बल्ले ऐसे हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी ना। फॉर इंस्टेंस एज अ बैट्समैन, अगर मैंने एज अ टेल एंडर आई एम सेइंग, नंबर 8 का बैट्समैन, मैंने अगर प्लान कर लिया हिटिंग का, तो कई दफ़ा क्या होता है वो जाते ही इधर है, वो जाता ही इधर है, बट दैट्स वेयर यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस कि बॉल इज आउटसाइड ऑफ स्टंप, आई विल गो एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। देखिए वसीम भाई, मैंने फील्डिंग पे जब हम लोग बात कर रहे थे ना कि हम फील्डिंग करते तो हम अगर बैट्समैन है तो बैटिंग का सोच रहे होते हैं, ठीक है, या ये आसिफ की आपने बात की ना, ये जरा दिखा रहे हैं हम आपको स्क्रीन के ऊपर, जस्ट टॉक अस थ्रू एंड वी विल कम बैक टू व्हाट यू वर सेइंग इन अ मिनट। ये देखें आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल था, तो जो छक्का लगा है वो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर गई। ये पीछे बॉल था तो मिड विकेट पे छक्का लगा। ये देखिए सामने बॉल था, सामने छक्का लगा। ये उसने बाहर किया, उसने एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा। इंस्टेड ऑफ गोइंग मिड ऑन मिड विकेट वो एक्स्ट्रा गया, ऑफ स्टंप बाहर था यार। लेकिन जो मैं बात कर रहा था वसीम भाई, इन सारी शॉटों में आप देखें, शॉर्टर लेंथ बॉल था या आगे भी था, तो वो जो मैं बात कर रहा था कि एलिवेशन के लिए आप हल्का सा यूं करते हैं, यहाँ पे दैट इज़ सक्सेसफुल इन दीज कंडीशंस। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे या साउथ अफ्रीका में देखेंगे, AB डिविलियर्स ये पोजीशन करेंगे, वहीं से हाथ चलाते हैं, क्योंकि वहाँ आपको ये सोचना है कि मैंने जल्दी ये टांग पे वेट डाला ताकि मैं बैक फुट पे जल्दी आ सकूँ। फ्रंट फुट पे पता है कि ऑन द अप भी यहाँ पे मुझे इतनी लंबी टांग निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ टाइम करना है, तो शॉट खुद बहुत निकल जाएगी। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल में जावेद भाई भी करते थे, इवन सईद भाई करते थे, कि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपने बैक फुट पे अपने स्कोरिंग शॉटों की ज़्यादा, मलिक भी इवन करता था कि कट शॉट और ये है या ये वाली शॉट, इसकी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस, वहाँ पे आपको वॉलियाँ नहीं मिलनी। अच्छा, आज JJ स्मिथ उनका 193 स्ट्राइक रेट है। सॉरी JJ वो वाला बहुत अच्छा हमारा जो JJ संडे वाले दिन उनका स्ट्राइक, हमारा JJ संडे को नहीं आता, हमारा JJ जर्जी सेजा की बात हो रही है। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਸੁਬਾਹ 9:30 फोन आया, अच्छा खेला है। वो गोल्फ क्लब जा रहा होगा ना, नहीं, तो फोन आपको किया कोई उसने। काम था? JJ स्मिथ की बात कर रहा नहीं, हूं कोई भाई। काम नहीं, था मेरा तो कोई काम नहीं है। इसलिए आप सोच रहे होंगे, अच्छा हो ये जो मैं सोच रहा हूँ वो JJ का स्ट्राइक रेट, नहीं कोई काम है तो आप 193 नहीं, हमारे वाले JJ का 0 स्ट्राइक रेट है बाय द वे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इस वाले का 193 है। हसरंगा को भी बहुत अच्छा खेला। जी हाँ, ये जरा आपकी स्क्रीन पे हम दिखाते हैं आपको। इज रियली दिस अगेन, लुक एट दिस, द राइट चॉइस। देखिए उसने पहले पूरा उसको सेटअप किया, दूर दूर बॉल कर रहा था तो पीछे आके सीधा खेल रहा था, जैसे उसने करीब बॉल किया उसने स्लॉप स्वीप मारी। और फास्ट बॉलर्स को इवन देख लें कि वो कितना, जो अभी शुएब बात कर रहा था कि आपने हर साइड को यूटिलाइज करना है। अगर आगे गेंद है तो उससे मिड विकेट मारी है, थोड़ा सा स्लो ऑफ स्टंप के बाहर किया है तो उसने उसको उस
एरिया को यूज़ किया है, थोड़ा डिले किया है, शॉर्ट पॉइंट के पास से चौका मार दिया। तो बेसिकली द आइडिया है इसके, एक तो पूरा ग्राउंड आपने यूज़ करना है, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन कंडीशंस में, यू कांट जस्ट फाइट अगेंस्ट द पेस। उस पेस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, उसको सिर्फ गाइड करें कि किधर इसको मैंने इस पेस का फ़ायदा उठाना बॉलर। और एक और चीज़ भी पता है, जब शॉर्ट बॉल आता है मोस्टली हम लोगों ने ये देखा है कि वो आउटसाइड ऑफ स्टंप कराते हैं ताकि उसको इस तरफ खींचना ना वो मुश्किल हो जाता है। खड़ी होगी। और मैंने देखा बहुत सारा टाइम थर्ड मैन भी ऊपर होता था, बैक फुट पॉइंट भी ऊपर होता था, और वो फिर भी आउटसाइड ऑफ स्टंप आपको बाउंसर करते। जब आप बॉलर को ये वाला शॉट मारना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी तरफ आएगा बॉल, वैसे ही मुंह की तरफ बॉल आ रहा हो तो आप कोई हरकत करते हैं। हरकत में बरकत है। तो जैसे ही इस तरफ बॉल आए तो मकसद ये है कि जहाँ का बॉल, चाहे वो आगे है चाहे वो बाउंसर है, कोई भी लेंथ है, आप उसी तरफ खेलें, रिगार्डलेस के कहाँ पे पीछे फील्डर्स खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, वो शॉट लगेगी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। लेकिन फिर वही मेरा सवाल है शेब कि देखें, ये नहीं हो सकता कि मैं ग्राउंड में जाऊं और मैं सोचूं कि मैंने हर तरफ खेलना। उसके लिए आपने जो डे इन डे आउट आपने प्रैक्टिस वैसी डिज़ाइन करनी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ 15 ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ। According to our people, ਐਵੇਂ ਕਿ 15 ਪੈਦਾ ਕਰੋ, पावर रेटिंग ही अगर सिर्फ ये वाली कर रहे हैं तो ये वाली तो नहीं होनी। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚ ਪਾਓ। अभी फिर किसी ने उन्होंने आज तरला 5 मिन्नत करो। 4 5 ने ट्वीट किया, उसमें तेरा नाम है कि मेरे प्लेइंग 11 ये है, वो ऐथे बैठा है। एक्चुअली वो बहुत सारे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में फीडबैक नहीं, बहुत but सारी आ अब रही है। मैंने उस दिन भी कहा, was in दुबई, so इंटरव्यू में मैंने कहा कि अब एक टीम सेलेक्ट हो गई, whatever it is, just one for once as a nation, let's back that team, see what happens, very let's love them. बिल्कुल ऐसे ही है। Also, वसीम भाई, आप सारी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते। Exactly. यहाँ बैठे हुए बेशक आपके, हमारे पास जितना मर्जी नॉलेज है, हमारे पास स्टैट्स हैं, हर चीज़ है, हम सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते। तो ये सेम गोज फॉर द प्लेयर्स कि यार दैट्स नॉट योर डोमेन व्हाट अदर्स आर सेइंग। ठीक है, Exactly. तुम्हारी जॉब है, तुमने उसमें दिन रात एक कर दिया हुआ है, जस्ट फोकस ऑन योर ओन थिंग। सही है। हम सारी चीजें नहीं कंट्रोल कर सकते, बट जो कंट्रोल कर सकते हैं वो सही से कर सकते हैं। controllables and the rest, if you can't control it, you can't control it. Simple as that. दोस्तों, ask the pavilion, #ask the pavilion, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप ये हैशटैग इस्तेमाल करके अगर आपके कोई सवालात हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो आप हमारी तरफ भेज सकते हैं और प्रोग्राम में आगे जाके हम उनके ऊपर बात करेंगे, आपके सवालात लेंगे और अपने एक्सपर्ट से कहेंगे कि वो जवाब दें। बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि जी वकार यूनुस कहाँ है। तो कल भी आपको बताया था, आज दोबारा आपको बता देते हैं कि वकार यूनुस जो है वो ट्राई नेशन के लिए न्यूजीलैंड में कमेंट्री कर रहे थे और कश्ती पे सवार होकर पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। दुबई तक सफर है, दुबई तक, आखिरी खबरें आने तक दुबई तक उनकी कश्ती जो है वो पहुंच गई है। उसके बाद हवा वापस न्यूजीलैंड की शुरू हो गई है। कैसी है, नहीं चप्पू वाली कश्ती है, सेल वाली नहीं है, तो वो ज़रा थोड़ा रेस्ट करके अब आ रहे हैं। तो कल सुबह से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, तो हमारा पैनल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। याद रहे कि #AskThePavilion, और इस मौके पर हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड ARY ज़ैप ऐप। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे आइकॉन्स, हमारे सुपरस्टार्स, लेजेंड्स। आई गॉट शोएब मलिक, मिसबाह उल हक एंड द किंग हिमसेल्फ मिस्टर वसीम अकरम। और जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारा जो दूसरा मैच जो था, पहला मैच जो आज खेला गया था, सॉरी नमीबिया मुकाबला श्रीलंका, जहां पे एक बहुत बड़ा हुआ है और बहुत सी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जनरेट हुई है। एक तो कि ये विकेट्स किस तरह की होंगी और ये मीडियम पेसर्स जो कि इन विकेटों पे ऑपरेट करेंगे, हमारे खिलाफ भी इनको किसी को मौका मिलेगा। एक चीज़ मिसबा आप बात कर रहे थे कि जब भी इस तरह की मिनो टीम्स आती हैं या ये जो क्वालिफाइंग टीम्स आती हैं जो जिनके पास सीमर्स होते हैं, मीडियम पेसर्स होते हैं, तो अक्सर घास छोड़ दी जाती है पिचों के ऊपर अगेंस्ट एशियन टीम्स। ये क्या स्टोरी है? घास से आपकी कोई खास दुश्मनी है? वो तो वसीम ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दी है, तो क्या वजह है आपको? अच्छा माहौल के लॉन में, घर का जो लॉन है फ्रेंडली फील कराते हैं, वहाँ पे भी बोला हुआ है कहानी लगेगा। ये मुझे मशहूर कर रहे हैं, हालांकि मैं तो अकेले ही खड़ा होता था घास पे।
घास पे अकेले क्यों खड़े होते हैं आप? क्योंकि बाकियों का काम ना होता फील्ड में खड़े होते थे बाकियों को ड्रेसिंग रूम में काम होता था वो रुकते नहीं थे। ये चले ये किया जा सकता है। आज बॉलिंग नमीबिया की हमने बात की, हमने डेविड वीजे की बात की। एक चीज़ डेविड वीजे के हवाले से करते चले दोस्तों, आप सब जानते हैं जैसे शोएब ने बात की कि डेविड वीजे का और पाकिस्तान सुपर लीग का एक बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता रहा है। ही इज़ बीन देयर विद द पाकिस्तान सुपर लीग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड हैज़ प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान और And won so many games for Lahore Qalandars. Crucial games. impact player for Impact लाहौर player, no कलंदर्स। doubt, no doubt. और इस वर्ल्ड कप से पहले लाहौर कलंदर्स ने नमीबिया की टीम को इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने के लिए एक ख़ास लाहौर कलंदर्स की टीम जो थी वो भेजी थी एक स्पेशल सीरीज़ खेलने के लिए टू नमीबिया जस्ट बिफोर कमिंग इन। और इस नमीबिया की टीम के 4 खिलाड़ी जो थे वो लाहौर कलंदर्स की जो हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट एकेडमी है उसमें आकर यहाँ पर वो ट्रेनिंग करके गए हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। सो क्वाइट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ लाहौर कलंदर्स नॉट ओनली इन द पाकिस्तानी टीम ये बिल्कुल मैचेस आ रहे थे, इवन जियो सुपर पे वो मैचेस आ रहे थे सारे। और जाहिर है आप जब कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं और अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स आपको खेलने को मिलते हैं, बॉलर्स भी मिलते हैं, आप बैट्समैनों को और different conditions में। बिल्कुल प्रिपरेशन आपकी डिफरेंट कंडीशंस में और डेविड वीजा ही हैं जिन्होंने ये सारे मैचेस जो थे अरेंज Organize करवाए थे। बेसिकली और लाहौर बात कर- कलंदर्स वेंट टू नमीबिया। Yeah. वहाँ पे ये इनकी जो सीरीज़ थी गालबन एक ट्राई सीरीज़ थी, या जो भी वहाँ पे ये खेल रहे थे। एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर दैट उनके कुछ प्लेयर यहाँ पे भी आके जिन्होंने ट्रेन किया, तो वो जियो सुपर पे लाइव भी हो रहा था। पर मेरे ख्याल में ये दोनों कोशिश यही थी उनकी। डेविड वीज़ा ऑब्वियसली उसने ही बेसिकली मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स के थ्रू ये फोर्स किया होगा कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक अच्छा हमारा वो they do a lot for cricket. They do spend a lot of money and time. लाहौर कलंदर का देखा जाए जिस तरीके से वो टैलेंट ढूंढते हैं, जैसे हारिस सोहेल आया, व्हाट अ स्टोरी। हारिस राउफ। ये शिकोंगो जो बॉलर थे नमीबिया के, इन्होंने आते शिकोंगो पहले ओवर के अंदर 2 विकेट्स लिए इन्होंने। क्वाइट एन इम्पैक्ट दैट ही क्रिएटेड, लुक रियली गुड। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं बिकॉज इंटरेस्टिंगली बिल्कुल मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था मैच का। बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे निशांका, और जिस तरीके से रन्स करके आए थे एशिया कप में, और ऐसे बैट्समैन है जो कि इस कंडीशन में बड़ा हेल्पफुल होना था। यहाँ पे थोड़ा स्टडी खेलने वाला प्लेयर चाहिए था। ये हैट्रिक चांस का बॉल था, तीसरा बॉल। आई थिंक अगेन वही सिंपल एक्शन, उस एरिया में आपको बॉल जब पिच होता है आते ही तो सरफेस खुद कुछ ना कुछ होता है वहाँ पे। जिस तरफ को भी बॉल चला जाए आपके लिए एज अ बैट्समैन 5 to 6 मीटर लेंथ से चेक करना बड़ा मुश्किल हो। मीडियम पेसर जो है ना, मीडियम पेसर, और स्पेशली इस फॉर्मेट में या वाइट बॉल क्रिकेट में, जब तक उसका आप प्लान नहीं तोड़ोगे, और वो प्लान ये है कि उसका सीम अप बॉल, ऐसे ही कि वो सीम, वो वेरिएशन पे आपने मजबूर करना है एज अ बैटर कि वो उस पे जाए। तो इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जो आउट भी हुए। जो निशांका है मिड ऑन पे, उन्होंने 3rd ओवर में जाके वो उनको शॉट मारने की कोशिश की, या वो इंटेंट शो करवाया है। तो सीम अप जो है ना, मीडियम पेसर को अगर आप अलाउ करेंगे सपोर्टिंग पिच पे, वो आपको तंग करेंगे। और देखें मैसेज जो है ना, वो आपका शुरू से जाना चाहिए ऑपोजिशन के, वी आर कमिंग आफ्टर यू, वी गोना कम आफ्टर यू। तो वो इंटेंट आपका वहीं सेट हो जाता है। तो श्रीलंका का मुझे ये लगता है कि उनका जो शुरू में इंटेंट था, बट वी वर होपिंग कि बड़े मोमेंटम के साथ आए होंगे ना एशिया कप की। ये जो मीडियम पेसर्स, यू नो, पिचिंग द बॉल अप, लेटिंग यू नो सीम हिट द डेक एंड देन मूविंग ऑन दिस पिचेस। On these यही pitches. ये शारजा में, ये कराची में करें तो ये गेम इनका ठट्ठा से मिलेगा। Good old days, Wasim. You had bowlers like Terry Alderman. You had Ian Chatfield. Yes. Who would be bowling these channels? You know, this up and making. Terry you come- Alderman got 42 wickets, if I'm not wrong, in 6 Test series against England in England. जी. And he got a lot of wickets in Australia, where close to the stumps आके he wasn't, he was 125 भी नहीं था, वो था 135 थोड़ा medium 140 pace के ही दरमियान। खेलेंगे। I know, but इसकी जो outswing थी, जी. that was just unbelievable. Every ball was from middle to off, and you know every day same. उसने बड़े आउट किए, बहुत ज़बरदस्त बॉलर, मज़ेदार बॉलर था। Yeah. आई थिंक कि जो सरप्राइजिंग फैक्टर था, ठीक है मीडियम पेसर्स के लिए तो कंडीशंस थी, लेकिन उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने
4 ओवरों में 18 रन 2 आउट, मतलब दैट वाज सरप्राइजिंग कि श्रीलंका उसको भी कैच नहीं कर सकी। Maybe तब Scored तक एक दो bowled विकेटें very गिर गई well. थी, they gone back into their shell probably. कुछ- Usually they don't go back to their shell. Yeah, Sri Lankans, Main we've wicket seen. ले गया। हमारे खिलाफ the एशिया clip. कप फाइनल में दे नेवर वेंट 77 5 for 58. या जो मैं आपको बात कर रहा था वो राजा पक्षा की, Yeah. मेन विकेट उसने ली है। आई Yeah. मीन दे टुक अ चांस। और अगर आप वो देखें अभी वो जब आएगा तो आप देखिएगा कि उन्होंने फील्ड कैसी ज़बरदस्त सेट की उसके लिए। आई थिंक वही चीज़ जो हम बात कर रहे थे, बैक ऑफ लेंथ, बैक ऑफ लेंथ। Yeah. कोई गेंद आगे नहीं किया, बाहर नहीं किया, दूर दूर बॉल कर रहे हैं और वो पिच टाइम नहीं दे रहा और बैट्समैन को रूम भी नहीं मिल रहा शॉट खेलने के कोई लिए। एक्सेप्शनल बॉलर नहीं है, जस्ट यू नो Finger spin. लेफ्ट आर्म स्पिनर आके बस जिसने वेरिएशन थोड़ी पेस की है और आई length. सपोज विकेटों में की है गेंदें मोस्टली। ये श्रीलंका की फॉलो विकेट है। ये मेंडिस This was the first one we say struck there again. देखिए ये भी सीम अप बॉल था। सीमा पर हल्का सा बाहर निकला। और अगर हल्का हम सा। देखें डेविड वीजे जब Yeah. यहाँ आके ठीक है डिफरेंट कंडीशंस हैं तो वो कभी भी सीम अप बॉल करता ही नहीं वो है। upgrade उसके करता है पूरे mostly. 4 ओवर्स के स्पेल में वो वेरिएशंस कर रहा होता है। Variation करता है। तो सीम अप बॉलर्स मीडियम पेसर का जब तक वो सीम को हिट करता रहेगा इसका मतलब है कि वो आपको तंग करता रहेगा। और ये भी अगर बॉल देखें तो वो क्रीज में वही खेलते रहे उनको। मीडियम पेसर के अगेंस्ट आपने कुछ ना कुछ करते रहना। जैसे आप स्पिनर को जो है ना उसकी लेंथ नहीं बनने देते, मीडियम पेसर की भी नहीं बनने देनी चाहिए। That's so important. बिल्कुल। ये हम अभी देखेंगे फॉल ऑफ विकेट्स का पैकेज आएगा, उसमें ये सारी विकेट्स जो हैं हम दोबारा आपको दिखाएंगे। जो अभी आप देख रहे हैं इस वक्त श्रीलंका की, दिस इज वुड द श्रीलंकन कोचेस बी अ लिटिल कंसर्न्ड आफ्टर टुडेज गेम? Yeah, I think they've been done by the conditions. Simply हम माने या ना माने, देखें ये रन्स बहुत ज़बरदस्त खेलते हुए आ रहे हैं निशांका और कुशाल मेंडिस, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन मेंडिस टेस्ट मैचेस में हमारे अगेंस्ट भी यही लेंथ, बैक ऑफ लेंथ से जब बॉल बाहर निकलता है फोर्थ स्टंप पे तो ये बहुत दफ़ा आउट हुए हैं। आउट स्विंग पे ये स्लिप लगते हैं इनकी, वो खुलते हैं। ये ऑन साइड पे बहुत अच्छा खेलता है, पुल शॉट बड़ी अच्छी मारता है, इवन स्पिनर्स को भी इस साइड पे अच्छा खेलते हैं। लेकिन क्योंकि सीम हो रहा है यहाँ वही कि अगर टेक्निक में कहीं थोड़ा सा भी गुंजाइश है एक्सप्लॉइट करने की, अपोजिशन एक्सप्लॉइट करती है। उसके बाद अगर देखें नंबर 3 एंड नंबर 4 इज़ अ कंसर्न फॉर देम इवन इन द एशिया कप। ये श्रीलंका खेल रहे थे, उनको ड्रॉप किया लास्ट गेम में। उसके बाद गोना तिलका आज भी कुछ नहीं किया और एशिया कप में वो फ्लॉप रहे क्योंकि वो तो ये ओपन पे बड़ी- उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, ओपन- इसीलिए लेकिन ओपनर उन्होंने उन दोनों को सेट किया, निशांका और कुशाल मेंडिस को, उसको 4 पे लेके आए जैसे आपने कहा कि स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन इनके स्टैट्स ओपनर बहुत अच्छे हैं और वो बहुत तगड़ा प्लेयर है और उसका स्ट्राइक रेट भी जो है वो 150 प्लस रहता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ज़रूर इनके जहन में ये चीज़ आएगी कि कुशाल परेरा could have been a better choice here, especially considering Australia. Yeah. जैसे वो Bouncy साउथ wickets. अफ्रीका में खेलता था, ऑस्ट्रेलिया कट पुल और बाउंसी उसने वहाँ पिचेस टेस्ट पे। मैच भी जिताया था एक लंबा और स्पेशली स्कोर आपका करके। नंबर 3 और नंबर 4 जब स्ट्रगल कर रहा हो, टेक्निकली वो उस तरीके से फास्ट बॉलर्स को खेल ना पा रहा हो, तो मुझे लगता है कि ये एक वीक पॉइंट है श्रीलंका का। और फिर उनकी फास्ट बॉलिंग ऑब्वियसली। अच्छा, हसरंगा ने आज बॉलिंग की, उनका जो इकॉनमी रेट था वो बड़ा अच्छा था, बट अगर आप नोट करें सिर्फ 1 विकेट वो ले सकें। आई मीन जब हम पहले प्री मैच बात कर रहे थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नामीबिया के बल्लेबाजों को बहुत तंग करेंगे आप हसरंगा। एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करता भाईजान, एक्सपर्ट्स तो आप लोग हैं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा था। बट ये एक बात हो रही थी कि जी हसरंगा जो है वो बड़े ज़बरदस्त हैं और की प्लेयर हैं, बट जैसे उनके बैट्समैन ने स्ट्रगल किया, मुझे ये लगता है कि जो बॉलर्स थे वो भी थोड़ा सा इस सोच में Off थे कर कि रहे थे? हो जाएगा। हो जाने वाला जो सीन है ना वो अब ऑफ हो चुका हुआ है। Okay. तो आप रिगार्डलेस इसी तरह जो है ना, मैं सॉरी इस चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ, Sure. हमारे मेरे को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया, तो somebody asked बिल्ली को क्यों नहीं सिखाया, कहता अगर मैं सिखाती तो इसने मुझे खा जाना था। तो जब भी कोचिंग करो या किसी चीज़ को बताओ तो थोड़ी सी चीज़ रख लो ताकि अगले साल भी नौकरी लेनी है। ओके, दैट्स वेरी गुड थॉट प्रोसेस, बहुत सही बात की देखिए आप आपने। बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, आप प्लान्स करते हैं,
Yeah. लेकिन जो मेन प्लान होता है ना वो ग्राउंड में जाके जब आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग करनी है आपने जाके, वो आप इंडिविजुअली असेस करके अपनी गेम का प्लान करते हैं, As वो well. बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेस्ट प्लान होता है वैसे क्योंकि बात- हर मोस्ट प्रॉपर सिचुएशन, प्रॉपर डिटेल वाली जो Meeting. जो वो चीज़ें होती हैं वो आपको ग्राउंड में जाके एज इंडिविजुअल और समझ आती आजकल तो हैं। शेबी मीटिंग का चेंज हो गया, मीटिंग में स्टैट्स नहीं दिखाते, अब आपके पास स्टैट का बंदा है, अगर आपने किसी की बॉलिंग देखनी है आप उसके पास चले जाओ, वो आपको सेपरेट दिखा देगा सारे बॉलर्स की, किसी बैट्समैन को देखना है वो आपको सेपरेट दिखाएगा। अब आई सपोज वो टाइम चलेंगे या 3-3 घंटे या मीटिंग ही करते रहो। वैसे भी वसीम भाई आपको ये देखना चाहिए, अगर जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है हाँ। यूजली वहाँ पे शेयर होती हैं, अगर बॉलर्स हैं जी उनकी ये स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं या वो ये ज़्यादा वेरिएशन यूज़ करते हैं, इसी तरह सेम गोज़ फॉर द बैट्समैन। उसमें ये है कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, अगर आपको गुगली समझ नहीं आ रही, कैरम बॉल नहीं समझ आ रहा, दूसरा नहीं समझ आ रहा, वो आप ज़रूर देखें, लेकिन आप ये दिमाग में ज़रूर रखें कि कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं, वो उनको टारगेट करेंगे। श्योर। क्योंकि वीडियोस में तो ये होता है ना कि जो आपने सिर्फ गेट सम इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको इनसाइड ये पता होता है कि मेरे ये एरियाज हैं, यहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ, इनमें मैं वीक हूँ, तो इसको वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। और एक और बड़ा क्वेश्चन जो मैं कल से पूछना चाह रहा था, आज पूछ लेता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है इस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, कि मैचअप्स और स्टैट्स कितने ज़रूरी हाँ, हैं, कि ये बहुत टीमें ये- यूज़ करती हैं और कितना करती हैं, कि पाकिस्तान टीम यूज़ करती है तो कितना करती है, और मैं- मैचअप्स का मतलब क्या है, ताकि हमारा आम व्यूअर समझ सके। देखिए बात यह है कि मैचअप्स बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है आपको। ओके। ऑब्वियसली मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट ईयर जब PSL हुआ तो यकीन करें उसमें जब एनालिस्ट मेरे पास आया और उसने कुछ मेरे अपने पिछले जो मेरी ट्रेंड्स थे, जिस तरीके से मैं खेलता था, वो मेरे साथ आके जब उसने इंफॉर्मेशन शेयर की, आई वाज सरप्राइज कि यार अच्छा ये ऐसे होता है। यानी इस हद तक पता है कि आपको अर्ली ऑन आप जाएंगे, ये वाला बॉलर आएगा तो आप नॉर्मली पहले 2-3 गेंद ऐसे खेलोगे, फिर रिलीज शॉट क्या होगा, फिर उसके बाद जब आप 10-15 बॉल खेल जाओगे तो ये बॉलर आएगा, इसको कैसे खेलोगे, इतनी हद तक डिटेल। लेकिन बात वही है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यूटिलाइज़ कैसे करनी है आपने। अगर आपके दिमाग में नहीं होगी, आपको वो क्लियर नहीं होगा, उसका आप तोड़ नहीं निकाल सकते। अब उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे इंग्लैंड सीरीज़ थी, उसमें 2015-16 की सीरीज मलिक भी खेला था, तो मुझे नॉर्मली उनको पता था कि ये कॉर्नर मारता है और लॉन्ग ऑन पे ये मारता है, लेग स्पिनर को भी, तो ये प्लान करके आएंगे, ये फील्डर मुझे ये आगे नहीं देंगे, क्योंकि मुशी भाई उनके साथ रहे थे। पिछली सीरीज में मैंने बड़े रन्स किए थे। शेर और बिल्ली की एग्जांपल ये मुशी भाई की वजह से दी है। नहीं लड़ाई हुई। तो मैंने स्विंग सारा सिखाया उन्होंने। मैंने अब उस सीरीज से पहले प्रैक्टिस करनी शुरू की, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर से मारना, कि ये वाली शॉट मैंने नहीं मारनी, इधर मुझे नहीं देना उन्होंने फील्डर। अच्छा, तीसरे टेस्ट मैच में मैं पहले टेस्ट में पहले इनिंग में 100 कर गया। मैंने आदिल रशीद को मैंने को 3 के 4 छक्के मारे मिड ऑफ के ऊपर से। उन्होंने पहले बॉल से लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, वाइड मिड विकेट रखा हुआ, और मैं दिल में मैं चलो शुक्र है मैं जो है ना पहले से मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया हुआ। जब मैं 287 पहले इनिंग में 100 और दूसरी मैच में फिर मैंने 50 किया, फिर शारजा में मैं 60 पे खेल रहा था, तो फिर लेस्टर को वो जो है ना मिड ऑफ का फील्डर पीछे लेके गया, मैंने एक शॉट मारी। मैं कहा यार कम हो गया हूँ, तो सीधा दो टेस्ट जीत गए। कहावतें ऐसी बनी हुई है ना, चोरा नु पै गए मोर। तो ये चीज़ें जो मैं उसकी भी, जैसे शोएब ने अभी एग्जांपल दी लेग स्पिनर की, देखिए कोई भी बॉलर है ना, आप बिल्ली को देख के ना आंखें बंद ना करें कि यार मुझे गुगली रीड नहीं होती हसरंगा के मैं देख लाऊंगा। नहीं देख लेंगा भाई। जब तुम तैयारी करके नहीं जाओगे कि ये वाला ये बॉल करेगा, तो मेरे पास इसका जवाब क्या है, मैं जाते ही हिट नहीं मार सकता, तो नॉर्मल खेल के मैं क्या करूँगा, स्वीप मारूंगा, कैसे ऑफ स्ट्राइक होऊंगा, कौन से मेरे ऑप्शंस होंगे। तो मुझे याद है PSL में मैं ज़िल्मी से खेल रहा था, तो मेरा वो सीज़न
लाहौर कलंदर से लम्हे चाने खेल रहा था और उसने मुसीबत डाली हुई थी गुगली, तो मैं इंजर्ड हो गया पहले मैच के बाद को। मुझे कामरान पूछता है कि मैं कामरान को कहा, मैं कहा मुझे लगता है मैं लाहौर कलंदर के खिलाफ भी खेलूँगा, लम्हे चाने के लिए मुझे जो है ना हाजी भाई ने बचा के रखा हुआ। अच्छा खेलेगा? फिर मैंने दस तू करेगा की होता? अच्छा ओके प्लान। मैं क्या काम है, मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल है, क्लैरिटी। मैं उन्होंने नान दी तरह खावांगा। मैंने उसको कहा कि मेरा प्लान बड़ा सिंपल है कि पहले 2 बॉल तो मैं उसको, जाहिर है हाथ पता नहीं कैसे होता, पहले 2 बॉल तो मैं स्वीप मारूंगा उसको, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि मैं इसका हाथ रीड कर रहा हूँ, मुझे पता चल, फिर मैं उसको नॉर्मल खेलूँगा। तो पहले गेंद यूँ किया ना, तो मैंने स्वीप मारी, 2 स्कोर हुआ। अगला बॉल फिर उसने किया, फिर मैंने स्वीप पे सिंगल। अब 2 बॉल मैंने देख लिए, गुगली मुझे रीड हो गई, मैंने कहा बस ठीक ना अंदर उसको 2 छक्के भी मारे या जो भी। तो ये पॉइंट बात करने का मकसद ये है कि जो पहला प्लान है आपने मूव आगे रखनी है अपनी। ओके अगर मैं पहले बॉल में मेरे पास आंसर नहीं, मैं पहला बॉल यूँ खेलने गया हूँ, मैं लेग बिफोर या बोल्ड हो गया हूँ, तो मेरी गेम तो ख़त्म हो गई ना। तो मैंने ऑलरेडी उसको, जिसको हम कहते हैं कि 1 स्टेप अहेड आपने रहना है कि ये बॉल आना, तो मैं उसके लिए तैयारी करके जाऊँ। बुनियादी तौर पे शतरंज भी चल रही है बिल्कुल। मैचअप्स जो है ना वसीम भाई, वो हमारे सामने एग्जांपल है। अगर हम इफ़ वी लुक एट ऑल PSL टीम्स, यस मुल्तान सुल्तान जो टीम है वो इस तरह आपके साथ खेलते हैं मैचअप्स के साथ। उनके जो एनालिस्ट हैं वो बाहर से जो है ना वो लगाते हैं कि अगला ओवर जो है नंबर्स लगाते हैं। उन्होंने 5 नंबर्स रखे हुए हैं जो उनके 5 बॉलर्स हैं, वो बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा देते हैं बिल्कुल जी कि ये ओवर नेक्स्ट वाला ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। उसका मकसद ये होता है कि ये बैट्समैन इस बॉलर से इतनी दफ़ा आउट हो चुका है और अनकंफर्टेबल रहता है, स्पेशली टू स्टार्ट इनिंग्स। तो मैचअप्स जो हैं वो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी आप मीटिंग्स करते हैं बैठ के और प्लान्स करते हैं ऑपोजिशन के। आप कितने 20 साल पाकिस्तान से खेले जस्ट ओवर? और उसमें देखें वसीम भाई, आई हैव अ क्वेश्चन। उसमें ये देखें कि मुल्तान सुल्तान लास्ट ईयर ये जो ईयर गया है उसमें फाइनल हारा है और उससे पहले फाइनल जीते हैं। सो इट शोज के मैचअप्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली हेल्प करते हैं। वो बिलीव करना पड़ेगा हमारे थिंक टैंक यू शुड नॉट बी रिजिड अबाउट दैट। यकीन करें Flexible होना कई चाहिए। दफ़ा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है यार ये फलाने बॉलर पे हल्का है, लेकिन जब एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स आएंगे आपके सामने तो वो इसकी स्ट्राइक रेट और एवरेज इतनी ज़्यादा है। या कई दफ़ा आपको लगेगा कि यार ये राइट हैंडर है तो ऑफ स्पिनर को, जैसे जेसन रॉय था, ये ऑफ स्पिनर तो लगाया तो ये तो 4 छक्के मार देगा। पर एक्चुअल फिगर्स क्या कहती थी, स्पिनर्स के अगेंस्ट सबसे कम उसका स्ट्राइक रेट और एवरेज ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट। तो आप कई दफ़ा जनरली चीज़ों को देखते हुए, सारों को देखते हुए ना मिस आउट कर जाते हो चीज़ें। नॉर्मली जैसे ये इतने साल खेला है या मैं इतने साल खेला था, तो आपको जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने प्लेयरों को देखा, आपको पता होता है यार ये इसने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फिर भी जो नए प्लेयर है या कुछ, आपको इन स्टैट्स को ज़रूर देखना चाहिए और इनको यूज़ करना चाहिए। अच्छा, I have a question because आप consistently modern cricket की बात करते हैं, आप पूछते हैं, you know, you're currently playing cricket and all that and relevant, I everything. suppose. But having said that, I just step back in history for a bit and I want to ask you कि obviously, you know, आपने जो क्रिकेट खेली है सारी की सारी legendary stuff, you know. Let's go to batting for a moment. Yeah. Australia Test match, you scored a century and a very, very valuable century that was. Now, so you were an all-rounder, not a batting I specialist. was a bowler who could bat, who could, I suppose, and you scored a century at a very crucial time in a very crucial Test match. उस ज़माने में आपको कोच मैनेजर किस नौयत का डेटा और फीडबैक दे रहे होते थे that somebody like Wasim Akram, who was a bowling all-rounder, went out there and made a legendary and a memorable century? उस जमाने में कोच हमें सिर्फ डेलियां देता था। शाबाश भी नहीं सुनने दे। शाबाश एंड डेलीज। एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं था। टीम मीटिंग होती थी, सीनियर प्लेयर तब आई थिंक जब ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, आई थिंक आई वाज 89 मस्ट बी 22। तो तब टीम मीटिंग में सीनियर प्लेयर्स लाइक इमरान भाई, जावेद भाई,
या कादिर भाई थे, जो भी थे बाकी बैट्समैनों को ये बताते थे हमें। फिर मुझे भी पता लग गया इतना क्रिकेट, तो 3-4 साल पाकिस्तान टीम में हो गए थे लैंकेशायर जब खेल के आया। सो वो जस्ट तब कोई ऐसा सिस्टम नहीं था स्टैट का या नथिंग। So would you say that was instinct? That was नहीं, प्लानिंग intent? थोड़ी बहुत होती थी। सीनियर प्लेयर्स बताते थे ये यहाँ पे वीक है, ये फिर बड़े प्लेयरों का तो पता होता है आपको, लाइक आइलैंड बॉर्डर ले लो, विव रिचर्ड ले लो उस दौर में, इंडिया से सनी गवास्कर, विंग साकर ले लो, न्यूजीलैंड से मार्टिन क्रो, जर्मी कोनी, ऑल दीज गाइस। एज कैप्टन आप इंडिया पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे, लेके जा रहे थे टूर पे, और शाहिद आफरीदी की टेस्ट एवरेजेस और टेस्ट के बारे में बहुत सारे सवालिया निशान लगे हुए थे। बट नॉट ओनली डिड यू इंसिस्ट ऑन टेकिंग हिम इन दैट टीम, यू ऑल्सो इंसिस्टेड दैट ही ओपन्स एंड ही एक्चुअली मेड अ सेंचुरी देयर एज वेल ऑन दैट। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने बहुत कॉन्फिडेंस जो था वो शो किया था। अगेन देयर वाज नो रियल डेटा टू सपोर्ट व्हाट यू वर बिलीविंग। आई थिंक आवर डेटा वाज अबाउट कि ये प्लेयर में कितनी फड़क है। टैलेंट तो होता है पर एक फड़क भी होती है, इससे पता लगता है कि इसने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, वो आर या पार टाइप खेलेगा। शाहिद अफरीदी 99 में उससे टेस्ट मैचेस में लेके गए हैं। देयर वर लॉट ऑफ आईब्रोज, इधर उधर लोगों ने बड़ा लिखा भी, और उसने पहले ही मैच में 140 किया चेन्नई टेस्ट मैच में। क्या उसने बैटिंग की, उसने सारी टेस्ट मैच की। सहवाग की बात करते हैं, सहवाग थोड़ा बाद में आया। अफरीदी ने टेस्ट मैच की, वनडे की बैटिंग, टेस्ट मैच में ओपन करके सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया था। बिकॉज बॉलर बजा के अटैक करने जाए वो बचने जाते थे। फील्ड सेट करने के लिए 3 स्लिपें नहीं थी, उसकी जगह 1 स्लिप थी। पता है अफरीदी को 19-20 बॉल किया, नॉर्मल बॉल भी किया इसने मार देना। सो ही वाज फिनोमिनल इन जनरल। बट आई थिंक इट वाज लॉजिकली एक ज़बरदस्त आइडिया। नॉर्मली जब हम भी खेलते थे यूएई में, तो यू ऑलवेज ट्राई टू हैव एग्रेसिव ओपनर्स हियर, क्योंकि यहाँ पे नए बॉल, रेड बॉल पे पिचेस ऐसी होती हैं, फ्लैट टाइप पिचेस होते हैं जो लेटर ऑन रिवर्स स्विंग होता है और स्पिनर्स को हेल्प करती हैं, रन स्कोरिंग मुश्किल हो जाती है। तो अगर अर्ली ऑन ऐसा प्लेयर हो कि वो जो अंडर प्रेशर कर दे दूसरी टीम को, रन तेज़ी से भी बनते हैं और ज़्यादा बनते हैं। मैं जिस पॉइंट पे मैं आ रहा था कि एक तरफ वी टॉक अबाउट डेटा एंड मैचअप्स एंड ऑल द इनपुट दैट कम्स इन फ्रॉम आउटसाइड द ग्राउंड फॉर द प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग इन, और दूसरी तरफ यू हैव द ओल्ड स्कूल राइट हियर व्हिच हैज टोटली ड्रिवन legendary stuff on instinct and on gut feelings and on judgment calls जिस पे कोई डेटा वगैरह लोडेड नहीं है। अभी क्रिकेट वही है। जेबी को कैसे पिक किया था, he'll tell you। शेयर दिस प्लीज। नहीं, पीआई से मैच खेलने आया था मैं जी, डिफेंस स्टेडियम कराची में मैच हो रहा था। सकलैन भाई गॉट इंजर्ड, राइट। तो अब आप लोग शारजा जा रहे थे ट्रायंगुलर सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका के साथ। तो विल्स कप होता था उस टाइम पे, और मैंने दूसरा बॉल किया तो मोइन भाई ने स्टम्प किया, तो वसीम भाई ने पूछा है कौन है। हम तो एक ही मैच के 1 ऑफ खेलने गए थे यार। तो फिर मोइन भाई ने कहा कि ये अच्छा है और ये टॉप भी कर रहा है विल्स कप में, और ये सैकी भाई की तरह दूसरा भी करता है बॉल। तो वैसे ही फिर उन्होंने कहा कि इंजर्ड है तो क्या ख्याल है, इन्होंने कहा फिर फाइनल में देखते हैं, अभी पहला मैच है। तो सोच ऐसी थी इनकी कि नहीं यार, ये नहीं कि 2 अच्छी बॉलें कराई तो इसको पिक कर लो। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, बाकी लोगों से भी पूछा जो मैं सीज़न खेलता था पीआईए से, उन्होंने कहा हाँ भाई इसमें ये चीज़ें हैं, अंडर प्रेशर कैसा रिएक्ट करेगा, वहाँ पे वो प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो सारा इन्होंने लिया, इस तरह मैं टीम में आया। और देखिए ये जो मैचअप्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये रिमाइंडर्स हैं। एक्चुअल स्किल तो एथलीट नहीं जो है एग्जीक्यूट करनी है, तो ये रिमाइंडर्स हैं छोटे छोटे जो कि आपको मिलते हैं। और इसमें सिर्फ ये है कि आपकी गेम में कंसिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसिस्टेंट चीज़ है उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपके परफॉर्म करने के, लेकिन एक्चुअल जो स्किल है वो ज़ाहिर बात है एथलीट ही करेगा एग्जीक्यूट करना है। नहीं, वेल जिस चीज़ पे मैं एम्फसाइज करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था, एक तरफ डेटा है आपका, मैचअप है, मेमोरी है, हिस्ट्री है जो आपको बताई जाती है सारी तरफ। और हमारे यहाँ जब हमारा टाइम था तब अर्ली ऑन जब हम आए तो कोचेस का भी कसूर नहीं था, उनके पास ये फैसिलिटीज़ थी नहीं, तब पता नहीं था ये मैचअप्स क्या होते हैं, स्टैट्स क्या होते हैं, बस सो जो उनको पता था उन्होंने वो हमें बताया बड़े अच्छे तरीके, जो भी हमारे कोचेस ने। बॉब वुलमर जो है वो लेके आए थे ना, बॉब वुलमर जब हमारे लेट बॉब वुलमर वो जब आए थे, वो वाहिद कोच थे उस टाइम पे जिन्होंने लेवल 4 किए हुए थे, वरना उस वक्त तो लेवल्स का भी नहीं पता था। ओह ओके, इंटरेस्टिंग। या नाउ वी हैव लेवल 4 कोचेस, एंड इट्स वेरी कंपेटिटिव इवन द कोचिंग 20 साल के बाद, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2003 and 4
ये Interesting. तब उनके पास लेवल Level 4 four की वो डिग्री थी कि उन्होंने सारे लेवल्स किए हुए थे। Wasim, how important is it for a coach? You know, he has a level 4 degree, Sure. but how important is for a coach to have played some kind of first class or international cricket? Very important. So New Zealand had a coach. Because unless until I'm all for people who put stats on Twitter or social Yeah. media, वो तो कोई भी कर सकता है ना निकाल के stats. But unless until you played the game at top level, you can't tell the pressure the cricketer or the certain sportsman is going through. Right. So you only can learn, only can explain it because you have done there, you've been there, you've done it. But जो जनरल क्रिकेट पे बोल सकते हैं सारे श्योर. हाँ, लेकिन बट न्यूजीलैंड के कोच थे जो भी previous coach, he had not played any international cricket, not played any फर्स्ट क्लास तो लंबी खेला होगा वो. I don't think so. या एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं है कि ग्रेट प्लेयर्स ऑफ द गेम, नॉट जस्ट क्रिकेट, Any sport, you're right. I get your can point, be a yes. great coach. Absolutely. Coaching Very is a true. different skill altogether. Very true. आपकी ईगो को आपने मारना है, आपके players are bigger than you. You are the kind of father figure for them, and they should be able to trust you. अब मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने 99 में वो फॉरेन कोच ले आए थे. The reason I had amazing coaches like Inti Bhai, Mushi Mushtaq, great Mushtaq Muhammad, all these guys were there. उन्होंने जो ज़बरदस्त हेल्प की इंतखाब भाई ने भी. बट जब 99 में ये आया तो उसकी रीज़न ये थी कि मुझे एज ए कप्तान और लड़कों को भी ट्रस्ट था उस पर कि उससे हम पर्सनल बात भी करेंगे ना, ये किसी रिपोर्टर को नहीं मिलेगी. हाँ, You see, that's very important. You got to trust your coach inside out, ताकि आप आपसे पर्सनल बात भी कर सको, घर प्रॉब्लम है उससे कर सको, वो आगे किसी को ना पता लगे. सो दैट्स व्हाई आई थिंक उस दौर में था. अब तो शायद हमारे भी इतने अच्छे हो गए हैं कि वो इनके सोल्यूशन Yes, देता था ना Yeah. वसीम भाई. अब ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम को, जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, Yeah. जो आप शेयर करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लॉइड किया जाता है, आपको Yeah. डिस्ट्रॉय किया जाता है. Yeah. आप पहले डिस्ट्रॉयड हैं, अब और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Okay, तो hold that उसको thought. फिर ये है कि hold that thought. That's a very meaningful thing that you've said, and that is a big discussion that we should have. मगर इस हम लोग लेंगे एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड ARY ऐप और ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप की कवरेज रवां दवा है. आप लोगों के साथ हम लोग बराह रास्त लाइव ऑस्ट्रेलिया से. आज हमने 2 मैचेस देखे, 2 बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. पहला अपसेट इस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का, और वो ये है कि नामीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया. सो ग्रेट डे फॉर नामीबियन क्रिकेट. दे मस्ट बी सेलिब्रेटिंग एंड दे ट्रूली डिजर्व टू सेलिब्रेट. दूसरी तरफ नेदरलैंड्स हैड अ वेरी क्लोज कॉल विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. द UAE टीम प्लेइंग really well. Even with a low score, they almost defended that total and gave Netherlands a run for their money. कल 2 मैचेस और हैं, and I promise you, after what we've seen today, every match in this ICC World T20 World Cup is going to be exceptional. Let's take a look at what we have in store for you tomorrow. पहला मैच कल आप देखेंगे दोस्तों, and that is Scotland versus West Indies. ये पहला मैच है आपका ग्रुप बी का, एंड दिस इज कमिंग इन फ्रॉम होबार्ट. 9 बजे मैच शुरू होगा. ऑफ कोर्स हम उससे पहले आपकी खिदमत में पेविलियन के साथ बराह रास्त होंगे. और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो है जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड. दिस ऑल्सो प्रोमिसेस टू बी ए गुड game of cricket. Zimbabwe versus Ireland. This will be the second match again at Hobart. So both these 2 games at Hobart tomorrow. और हम आपकी खिदमत में सुबह 7 बजे बराह रास्त पेविलियन लेकर हाजिर हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं तब तक सुबह मुझे हर तरफ से घुड़ियां रहती हैं. 8 बजे आ जाएंगे. नहीं आएंगे 7 बजे. वो घूरियाँ नहीं थी, वो ये था कि आप आ जाएंगे. आप आ जाएंगे. अच्छा, आप ऐसे बात सही है शोएब. नहीं, वो मुझे जो है आज मिसबा ने बड़ा जो है ना जिम के अंदर रगड़ा है, तो मैं सोऊंगा, मुझे नहीं कुछ ना समझ, मैं जाते साथ ही क्रैश करूंगा. होपफुली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि एक कश्ती के अराइवल का हमें इंतज़ार है कि वो बोट आ जाए वकार यूनुस की टाइम पे, ताकि वो कल हमारे साथ यहाँ पर Yeah, मौजूद very हो. big day tomorrow. Very exciting games. बोथ आर वेरी एक्साइटिंग. हाँ, वेस्ट इंडीज़ की स्कॉटलैंड से और आयरलैंड जिम्बाब्वे
kind of similar kind of teams. Ireland is actually a very good T20 team. और And then दोनों the के पास Australian मीडियम पेसर्स हैं अगर आज जैसा पिच हुआ नहीं, but Hobart की pitch is little better. बेटर Much more flatter than today's मेरा one. होम ग्राउंड बात बिग वही बैश है वसीम भाई, अर्ली ऑन जब मैचेस आपने कहीं पे ज़्यादा होते हैं तो मैंने देखा है बाहर वो अर्ली ऑन पिचेस पे ग्रास छोड़ देते हैं ताकि ये end तक जाए। लंबे टाइम तक जाए, ज़्यादा पिचेस नहीं बनाते। तो ये अगर केस हुआ तो फिर मुझे लगता है जिम्बाब्वे ज़्यादा नुकसान होगा जिम्बाब्वे को, Zimbabwe को। क्योंकि आयरलैंड उन्हीं कंडीशंस में खेलता है। जिम्बाब्वे स्पिन डोमिनेंट ज़्यादा हो गया, उनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, स्पिन को खेलते भी अच्छे हैं। All right, so two very, very exciting games, and of course tomorrow hopefully will be the resumption of the Agabata there as well. So, gentlemen, thank you very much, Wasim. Thank you. Keep smiling. Waqar is on his way. Sure. I can't wait to hear those raving and amazing stories about each other. That should be exciting. Again? उनसे You ये have to भी come up with पूछेंगे new ना ones. रास्ते में क्या क्या हर्डल्स आई उनके पास और न्यूजीलैंड से आते हुए। बिल्कुल वो बताएंगे, वो तो आने दें रास्ते में। मुझे लगता है कि गोल्फ वॉल्फ खेल रहे होंगे इस वक्त किसी जगह पे, बट वी लुक फॉरवर्ड। थैंक यू शुएब, इंटरेस्टिंग वैसे आप स्टफ। श्योर हैं कि सुबह वो आ जाएंगे? यार मैं बस कह ही सकता हूँ, मैं उसके बाद क्या कह सकता हूँ इस बात। That's all I can just say. उसी में कह रहे थे ना 3 दिन मैचअप्स के तो इसी सफर। तरह होंगे अगर वो आएंगे अभी तक दूसरा दिन है तेरा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? टोटली डिफरेंट, यू नो, यू स्टिल प्लेइंग ऑब्वियसली, टोटली डिफरेंट। पेशेंस है अभी तो स्टार्ट हुए हैं, पूरा महीना है। बहुत है वसीम भाई, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ये जो कैमरास लगे हुए हैं ना Yeah. ये मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें, और जैसे हम कॉन्वर्जेशन पीछे स्टूडियो के बाहर करते हैं तो मैं तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नेचुरल रहूँ। यू डूइंग ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा है यार, वेरी गुड। और वो जो पीछे हम करते हैं स्टूडियो के बाहर, वो वाली हम टीवी पे दिखा नहीं सकते, इसलिए नहीं, आपने कहा आप वीडियोस बनाएंगे, हाँ वो है, वीडियोस हैं वो बाद में आ जाएंगी दोस्तों। या ये बताएं कि जो पहली 2 बनी है वो दिखाने लायक नहीं है। ये भी है। अभी मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि अजीब सी बात आ गई थी, लोग इसको सियासी रंग दे देंगे, सो इसलिए वीडियोस की बात नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, गेट इनफ रेस्ट बिकॉज़ वी गोइंग टू बी बैक अप हियर अर्ली मॉर्निंग, सो थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपसे कुछ देर बाद आप ये स्पोर्ट्स के ऊपर देख सकेंगे एल क्लासिको, एंड इट इज़ बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। याद रहे कि हमने ये स्पोर्ट्स पे आपसे वादा किया था कि सिर्फ क्रिकेट तक कहानी महदूद नहीं होगी, यू विल बी एबल टू सी अदर sports, and we've spent a lot of money acquiring rights for football, golf, Formula 1, etc., and more will be added in the days ahead. So thank you very much for joining us on the Pavilion. We will see you tomorrow morning. Till then, take care of yourselves and keep watching the ICC Men's T20 World Cup. Follow us on our social media. Send us your messages. We're receiving Ask the Pavilion questions. We'll start talking about them tomorrow when Waqar Yunus is here. Apna khayal rakhiyega. Good night.